नमस्ते सब लोगों को और स्वागत आज के वार्ता के लिए। ये ग्राउंडेड वॉइसेस, एनईपीएम का ग्राउंडेड वॉइसेस और विकल्प संगम का विकल्प वार्ता का कोलैबोरेशन है। मेरा नाम वसुधा है और मैं कल्पवृक्ष की सदस्य हूँ और विकल्प संगम के संकलन में मदद करती हूँ। और आज हम ऑल्टरनेटिव्स विकल्पों की बात करने वाले हैं और हमारा हम एनईपीएम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इसमें। तो विकल्प वार्ता की जो शुरुआत हुई थी वो 2020 में हुई थी कोविड के दौरान, और ये एक संवाद के रूप में शुरू हुई थी। इस संवाद का उद्देश्य था कि जमीनी स्तर की उन आवाजों को सामने लाना जो स्वास्थ्य, परिवर्तन, लोकतंत्र और लैंगिक क्षेत्र में विकल्पों पर काम कर रही है, और उन आवाजों को इस माध्यम से जनता के सामने लाना। इसका उद्देश्य इन विविध उदाहरणों में समुदाय और स्थानीय संस्थाओं, अधिकारों, समानता और भलाई को मजबूत करने के लिए करी गई प्रयासों के बारे में जागरूकता पैदा करना और एक साथ सीखना और प्रतिबंध के लिए एक जगह बनाना। विकल्प वार्ता विकल्प संगम की एक पहल में से कई पहलों में से एक है, और विकल्प संगम विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एक साथ लाने के लिए विकल्पों का संगम है। ये एक बेहतर भविष्य के लिए सहयोगात्मक और सह कल्पना का उद्देश्य से एकजुटता के साथ काम करते हैं। आज हम मूलभूत जरूरतों के लिए सामुदायिक अगुवाओं के बारे में बात करेंगे, और सत्र के लिए हमारे मॉडरेटर है अरविंद नटराज, जो ब्लू रिबन मूवमेंट के एक स्वयं सेवक हैं और विकल्प संगम के सकृत सदस्य हैं। हम अब अरविंद को स्वागत करते हैं। मैं अरविंद को इसे आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अरविंद, यू कैन टेक ओवर नाउ। You guys can tag Arvind now. He's not able to unmute himself. You'll have to make him a co-host. Hi, can you hear me? Can you unmute now? Yeah, thank you. Yeah. Sorry, I think my call dropped off, which is why I wasn't able to unmute myself. So, आप सभी का नमस्कार, वनकम, and good evening. So, my name is Arvind. I'll be introducing our first speaker, KT Subramaniam ji. KT Subramaniam ji is the co-founder of Accord, which is a non-profit organization which works among the tribals of Gudalur and Pandalur talukas located in the Nilgiris. He's a secretary at Ashwini and Adivasi Munnetra Sangam, and himself belongs to the Mullu Kurumbu community. मैं हिंदी में भी इसका शेयर करूंगा। केटी सुब्रमण्यम जी जो है वो अकॉर्ड नाम की एक संस्था के को-फाउंडर है, एंड जनजाति जो कम्युनिटी है उनके साथ वो गुडलूर एंड पंडलूर तालुकास नीलगिरीज तमिलनाडु में काम करते हैं। वो वहां पे सेक्रेटरी है अश्विनी नाम की एक संस्था के, एंड आदिवासी मुन्नेत्र संगम, एंड स्वयं मुल्लु कुरुम्बु कम्युनिटी के निवासी है। तो मैं अभी सुब्रमण्यम जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर मैं रिक्वेस्ट केटी सुब्रमण्यम जी टू प्लीज टेक ओवर। सर, ओवर टू यू सर। Can you hear me? Hello? Yes sir, I can hear you. Okay, yeah. Yes sir. We are from Tamil Nadu and Nilgiri district, and our taluk called Pandalur and Gudalur, the two taluk we are working. We have 25,000 tribal people living this area. So four kind of the people are living here: Paniya and Katnayakan, Betakurumba and Kurumbas and Irlas, and 5 tribals are here. Everybody's have a different culture and different languages, but very totally we have more than 25,000-30,000 people are living here. So our main problem is land rights. All area was covered by forest area, but it was 40-50 years. Now it is cleared. A lot of people are migrated here. All the land is grabbed, so most of our land was lost. So when we started Accord we started in 86. During the time is our main goal is to empowering people to get back their land and fight for land and develop in the land. All kind of work we initiated from initial stage, and mainly we are organizing people and organizing people to come forward to do their get back their rights. And most of the time we are struggle and land rights movements. We started a land grab
land rights campaign, all that we had. And finally, same time, we worked with education and health. We started our hospital and we started our education institution here. And so village level, mainly our health is community health we started. So community health is very important among the people, because when we started the work, there was no one will be immunized. Mainly maternal care was very lack. No, the government official won't be go to the villages. Our initial work is started from that stage. So that's why we started a separate organization called Ashwini. Ashwini is a health association for health welfare in the Nilgiri. So Ashwini is our accord sister concern organization. After that, before that, we started a VVVT, Vishabharati Vidyodaya Trust, that will be take care all the education work. There also we have some tribal residential school government started in this area, but it's not functioning properly. There was a very poor health, poor education standard. So we want to improve the education standard, and most of children are not enrolled. Our main focus is to enrolling the children and strengthening the knowledge of their education needs and all that. So after we started the work, only many people are mainly the Paniya and Katnaikan people. They first going to school. So now all the children are enrolled. Education standard. Very few people are studied graduation and all that, but everybody started enrolling the children to school and all that. So our then we this Gudalur and Pandalur Taluk, we divided 8 area. So we established 8 area center, and there we decentralized project. So area level, it will be 8 area level where people will be functioning and their own people. So same time we organized all tribal people as a Adivasi AMS, no, Adivasi Munnet Sangam. So this Adivasi Munnet Sangam, each villages we established a village unit. So every village have a Sangam. So this that way we divided 8 area our work, and also lead education Adivasi leaders also. So each village now we are selecting the village volunteers. All our work we doing implementing through the volunteers. So they'll take care their work, and they will take care the in charge of the needs and the thing will they will mainly the health and education everywhere. So through the education we have education workers and this health workers, all in village level and area level, they're monitoring the villages. Like that, we have all villages are very small. It is called like hamlets. It's not a big villages. So 330 village hamlets we are covering, and all this taluk. So that was our main work. And now this Ashwini is functioning separate, and VVVT Vishabharati Vidyodaya Trust is functioning separate. Accord is functioning separate. But as Accord mainly working to rights and entitlements to get their ration card and ID card, Aadhaar card, kind of the work. It was very difficult for them to get it. So that work also we are concentrating to get for the people. And also the AMS leaders are taking responsible to all this all these activities. So mainly this land land the government official coming, our land was looking vacant land. So Accord already started some program for the land development program. They're providing tea plants. So we
wherever the land is vacant is there we can start planting the tea and grab the land. Like that we are got lot of the land. So that was our main focus. Now we almost achieved. So now we, after last 5-6 years, we are constantly working for implementing the FRA Forest Right Act. So now 50% people got rights through that Forest Right Act for the title for the land, and some area it's still in the progress. And also we have a lot of land dispute in this area because the wealthy area, lot of the from Kerala and Tamil Nadu, lot of the people are coming and grabbing land, and our people are not giving more priority to protecting the land. Some people that they're cultivating here, the next year they move to other places. So other people are put a fence and they grab all the land. So it was very problem, and so always we giving more awareness to the people to protect their land. The land only the land is our rights, so that we have to protect. So that was that way we are working for past 20, 25, 30 years. So we trying to establish one of the common resource like tea estate and area level office and all that we are established in 8 area. So that we think it is our achievement, and still some now I think that we are that much I want to say. Nothing to add. Other than now we have started on new project, Innovation Hub. So giving employment opportunity for the youngsters. So all the youths are after studying 12th grade and colleges, they will going to outside, and they are outside. Sometimes some people go outside, otherwise they find it very difficult to get a job. So again they are going to coolie work, and they're thinking why they are studying and all. So that's why we started to new employment opportunity for youngsters. So that new project called Innovation Hub. So there we are giving some mobilizing youth people and giving the employment opportunity, creating themselves for the new employment opportunities. That was our project. And also other project called Just Change. Our activities, our product. Most of our people are collecting honey and minor producers from forest, that we want to market it. So for that we are create a company called Just Change India Company. So through that company also we are marketing our product, and also agriculture product, coffee, pepper, honey, this kind of the tea, whatever we growing, that we are marketing in the other areas. So just changes main concept is to consumer to producers direct link. So producers are selling directly to the consumer. That kind of the work we are doing in this area. But that our intention is mainly people have to take a responsible. That's why now selecting all the villages, this new volunteers. So each villages we are selecting 2-3 volunteers. They will be village volunteers. They will be now all are from youngsters. So they're taking the entire village level responsible. So now onwards we are all the program implementation we do through this village volunteers. And the same time the health aspect also
we have a community health animators, health animators. Below that, the health guide. They all are volunteers from the selecting from the village level. So each village have a 1 or 2 health guides. They will any disease and any immunization program, all the news they can pass to the nurse. They can easily like how this ASHA workers working, like that health guides are working. That way we are working this 2 taluk. Thank you. रोम्बा नंरी सर. So for some of you, मैं ये हिंदी में थोड़ा आपको ट्रांसलेट करके शेयर करता हूँ. तो सुब्रमण्यम जी ने जो शेयर किया था वो ये है कि एकॉर्ड जो इनकी संस्था है उसका मेन काम है जो वहाँ पे लोग हैं उनको संगठित करना और उनके लैंड राइट्स और उनके बाकी जो हक है उसके ऊपर उनका बहुत काम होता है. एंड उसके अलावा वो कम्युनिटी हेल्थ, स्वास्थ्य पर भी बहुत काम करते हैं एंड शिक्षा के मुद्दे पर भी बहुत काम करते हैं उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन अश्विनी के थ्रू. एकॉर्ड का मेन मुद्दा पढ़ाई और स्वास्थ्य जो है छोटे जनजाति बच्चों को उनका स्टैंडर्ड्स हेल्प करने और उनका स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने में इनके थ्रू इन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स जो है उनको एनरोल करवाया है इन सब में. केटी सुब्रमण्यम जी ये भी शेयर कर रहे थे कि एकॉर्ड का जो मेन काम है वो नीलगिरी के 8 अलग अलग तालुका में होता आया है जहाँ पे हर एक गांव जो है वो एक संगम है एक आदिवासी क्षेत्र के एक लीडर के साथ. एंड काफी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है उनका काम करने का जो तरीका है एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप सिस्टम नहीं है. इन एक एक तालुका के अंदर वो कम से कम 350 हैमलेट जो है वो कवर करते आए हैं एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर काफी इनका काम होता आया है जहाँ पे 50% जो उनके कम्युनिटी के मेंबर्स है उनको उनका हक जो ओनरशिप है उनको उन्हें वापस मिल गया है. एक जो समस्या केटी सुब्रमण्यम जी शेयर कर रहे थे वो ये था कि शहरीकरण बहुत प्रेवलेंट है इनके आदिवासी विलेजेस में जिसकी वजह से काफी सारे जो लोग हैं केरल और तमिलनाडु से आते हैं एंड लैंड ग्रैब यानी जो जमीन की जो जब्त होती है उसका बहुत बड़ा एक इशू है जो यहाँ ये लोग फेस करते आए हैं. बट उनके कम्युनिटी लेवल पे जो यंग बच्चे हैं उनके साथ वो काफी लोकल वर्क करते आए हैं. वो वहाँ के जवानों को उनको मोबिलाइज किया जाता है प्रोजेक्ट इनोवेशन हब नाम से जहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग मिलती है और उन्हें फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी उनके लिए बहुत ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की जाती है. उसके थ्रू उनका एक प्रोजेक्ट है जस्ट चेंज जिसके माध्यम से वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट के प्रोड्यूस जो है नीलगिरी में उसका सेल होता है एंड उसके साथ साथ वो हनी की भी शहद का भी एक सेल होता है जो डायरेक्टली फार्म से प्रोड्यूस करते हैं एंड वो जो हमारे कंज्यूमर है वो कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं. तो आई थिंक थैंक्स अ लॉट सर. ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ ஷேர் பண்ணதுக்கு. ஒரே ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், நீங்க கடைசி வரைக்கும் இருக்க கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் மற்ற இதையும் கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம். ஸோ அது ஒரு ரிக்வெஸ்ட் करना. So thank you. Now I think we can start. हम दूसरे स्पीकर पर हम अब जाएंगे. The second speaker I'm going to introduce is Rigzin जी. Rigzin जी जो है उनका 12 साल का एक एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में. वो काफी एक्सटेंसिवली काम करते आई हैं पानी की समस्या पर एंड महिलाओं के स्वास्थ्य पर और एनवायरमेंटल मुद्दों पर लद्दाख में. वो स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी इंडिया ट्रस्ट जो है लद्दाख में उनकी मेंबर है एंड उनके साथ 2009 से जुड़ी है. एंड उसके अलावा वो उनका फिनेंसेस वगैरह मैनेज करती है एंड एक होम स्टे जो है यानी लद्दाख में जो होम स्टे है उसका कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज वगैरह संभालती है एंड दी हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट इन जो स्नो लेपर्ड हैबिटेट्स है वहां पर. काफी सारे इवेंट्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस जो है इन्होंने अटेंड किया है देश के विभिन्न क्षेत्रों में. एंड रिग्जिन जी स्वयं एक नेशनल यूथ अवार्ड की विनर रह चुकी हैं. 2009 में उन्हें दिया गया था. Rigzil ji has over 12 years of experience working in the development sector. She's worked extensively in the fields of watershed management, women's health, and environmental education in Ladakh. She's been working with the Snow Leopard Conservancy Trust in
Ladakh from the year 2009. And apart from working with Snow Leopard Conservancy, she's also been coordinating the activities related to a homestay and the handicraft development in the snow leopard habitats. And she's also been handling their finances. Apart from this, she's also a winner of the National Youth Award in 2009 and has attended a number of training programs, workshops, and conferences in different parts of the country. May I now request Rigzin ji, please, over to you. थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू सबको नमस्ते। जैसे अरविंद जी ने बताया, मेरा नाम रिगजिन छोरोल है और मैं स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी इंडिया ट्रस्ट के लिए काम करती हूँ पिछले 12 सालों से। तो मैं आपको थोड़ा सा संस्था के बारे में बताना चाहूंगी। हमारी जो संस्था है वो 2003 में रजिस्टर्ड हुआ था एज ए इंडिया ट्रस्ट। तो तब से लेके हम अभी तक काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। तो जैसे हमारा प्रोजेक्ट रिसर्च का एक होता है, तो फिर एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन का होता है, फिर लाइवलीहुड का होता है। तो हम पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस है इन कामों में। तो वो लद्दाख के काफी सारे जगहों पे हम काम करते हैं और लद्दाख के बाहर स्पीति में भी हम काम करते हैं होम स्टे पे। तो होम स्टे जो है हमारे लद्दाख में, हमारी संस्था जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो एज ए फर्स्ट संस्था थी जिन्होंने लद्दाख में होम स्टे प्रमोट किया था, होम स्टे स्टार्ट किया था। तो हमने स्टार्ट किया था होम स्टे 2004 में, 2004 में हमने स्टार्ट किया था। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है होम स्टे का, उसको स्टार्ट करने का हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स था, कुछ मकसद था हमारा, जो कि हमने आपको बताया कि हम एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी पे काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे बर्फीले चीता बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो यहाँ पे होते हैं काफी सारे। तो उनके बचाव के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं लद्दाख में। तो उसके रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं हम वो करते हैं। तो उनमें से एक है होम स्टे का। तो होम स्टे का जो स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव है, एक तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु है, उनको बचाना, स्पेशली स्नो लेपर्ड को, और गांव वालों को इनकम जनरेट करने के लिए था दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव। और जो तीसरा था वो हमारे स्नो लेपर्ड टूरिज्म प्रमोशन के लिए था। और चौथा जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स था वो था कि कैसे हम लद्दाखी कल्चर को, हमारे ट्रेडिशनल को कैसे हम प्रमोट करें। तो कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो जब हमारे यहाँ पे, आप लोगों को पता है लद्दाख में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं हर साल। तो पहले तो यहाँ पे काफी सारे फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, तो अभी कुछ सालों से बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे। तो उसको देखते हुए हमने होम स्टे प्रोग्राम स्टार्ट करने का सोचा। तो पहले जब यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते थे तो लेह में ही सारे रुकते थे। तो जितने भी टूरिस्ट आते थे वो लेह में रुकते थे, होटल्स में रुकते थे, गेस्ट हाउस में रुकते थे। और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स थे वो देख के वो लोग वापस चले जाते थे। और कुछ फॉरेनर टूरिस्ट आते थे जिनको ट्रैकिंग करना होता था। वो लोग ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ट्रैकिंग करके गांव में नहीं रुकते थे, लेकिन ट्रैकिंग टेल्स में वो लोग अपना कैंप लगा के रुक के फिर एक गांव से दूसरे गांव मूव होके वो लोग चले जाते थे। तो हमने सोचा कि टूरिज्म तो इंक्रीज हो रहा है हर साल, लेकिन कुछ गांव वालों को कुछ फायदा नहीं हो रहा है उसमें से। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनका इनकम सिर्फ जो गाड़ी चलाते हैं उनको है, और जो होटल और गेस्ट हाउस चलाते हैं लेह में तो उनका है। तो हमने सोचा कि कैसे कनेक्ट किया जाए कि गांव में एक तो हम प्रमोट कर सकते हैं एसएल प्रोग्राम। तो उस हिसाब से हमने एक बहुत साल पहले 2004 में एक सर्वे किया था जहाँ पे 500 लोगों से। तो वहाँ पे हमने काफी सारे टूरिस्ट को पूछा कि आप लोगों को गांव में रहना पसंद है कि या होटल में रहना पसंद है। तो ये फिर हमने गांव वालों से भी हमने सर्वे किया कि आप लोगों को कोई गेस्ट आता है आपके घर में, अगर उनको रखने के लिए आप लोग कंफर्टेबल हो, आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, आप लोग होस्ट करना चाहते हो, कुछ हमारे क्वेश्चंस थे, उनके हिसाब से हमने सर्वे किया था काफी सारे विलेजेस में और काफी सारे टूरिस्ट के साथ। तो हमें काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला उस सर्वे से। तो बहुत सारे टूरिस्ट ने कहा हम डेफिनेटली गांव में जाना चाहते हैं, लद्दाख की रियल लद्दाख लाइफ देखना चाहते हैं, उनके रहन सहन, उनके खाना
हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो फिर गांव वाले ने भी बोला हम बिल्कुल कुछ नया सीखना चाहते हैं, हम गेस्ट रखना चाहते हैं और हम कुछ इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं जिससे उनके लाइवलीहुड में थोड़ा मदद मिल जाए उनको। स्पेशली ये जो गांव वाले में जो माता होते हैं घर में जो रहते हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि वो लोग हमेशा घर में ही रहते थे, उनको बाहर जाने का कोई अवसर नहीं मिलता था। जो फिर पापा लोग होते हैं, फादर्स जो जिनके मेल फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो लोग बाहर जाते हैं काम से, तो जो फीमेल है तो उनको उतना चांस नहीं मिलता था, तो वो लोग काफी एक्साइटेड थे। तो इस बेसिस पे हमने एक होम स्टे स्टार्ट किया था 2004 में। पहले हमने 4 होम स्टे स्टार्ट किया था 2004 में हिमिस नेशनल पार्क के अंदर। तो वो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया वहां से। तो धीरे धीरे करके हमने लद्दाख में सारे जगहों पे हमने अभी हमारा होम स्टे है। तो शायद अभी हमारे संस्था से जुड़ी 200 से ऊपर होम स्टे होंगे जो अभी हमारे अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहे हैं। तो जैसे कहा कि मैंने जो होम स्टे में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, डेफिनेटली वो लोग वहां पे जाके फिर बोलते हैं हाँ कि कंप्लेन करते हैं फिर गांव वाले की गार्बेज का प्रॉब्लम हो जाता है करके। फिर हमने उसी से वहाँ पे गार्बेज मैनेजमेंट का भी हमने रिलेटेड कुछ प्रोग्राम भी किया हुआ है। तो हमने कुछ गांव के यूथ को हमने उनको एक नेचर गाइड ट्रेनिंग भी दिया हमने, ताकि जो जितने भी टूरिस्ट आए उनको अपने गांव के आसपास वो लोग गाइड करे, तो यूथ के लिए भी कुछ अच्छा सा इनकम हो जाए। तो हमने नेचर गाइड ट्रेनिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर रखा है। तो वो लोग गाइड भी करते हैं अगर वहाँ पे कोई टूरिस्ट आता है। पहले तो हमें काफी प्रॉब्लम हुआ था ये होम स्टे सेटअप करते समय, क्योंकि लोगों का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ जीव जंतु के वहाँ पे, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे वाइल्ड लाइफ, जैसे स्पेशली स्नो लेपर्ड। जब हम गांव में जाते थे पहले तो बोलते थे लोग नहीं हमें स्नो लेपर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारे बेल बकरी खा जाते हैं, इनको मार डालते हैं, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो जब से हमने स्नो लेपर्ड टूरिज्म प्रमोट करना स्टार्ट किया है तब से लोगों का एटीट्यूड भी चेंज होने लगा है। तो उनको लगता है कि एक तो स्नो लेपर्ड देखने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं, तो दूसरा इनके जो यूथ है, जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे जो है, जिनको हमने नेचर गाइड ट्रेनिंग दिया हुआ है, उनको भी एक इनकम आ जाता है। दूसरा जो जितने भी गेस्ट आते हैं वो लोग होम स्टे में बैठते हैं, तो फिर फैमिली को भी एक इनकम जनरेट हो जाता है। तो वो अभी हमें अभी 20 साल से हम काम करते आ रहे हैं होम स्टे पे, तो हमें काफी सारी चेंजेस देखने को मिले हैं। और एक हमारा है कंजर्वेशन, हमारा इस प्रोग्राम में है कंजर्वेशन फंड बोलते हैं जिसको, जो जितने भी गेस्ट आते हैं साल उनको 10% देना पड़ता है विलेज कम्युनिटी फंड में। तो उनको वो 10% जो है वो हर गांव से हम कलेक्ट करते हैं। तो जितने भी होम स्टे होंगे गांव में, तो उनसे 10% उनका एनुअल इनकम जितना भी होगा उससे हम 10% कलेक्ट करके कम्युनिटी फंड में डाल देते हैं, ताकि वो कम्युनिटी जो फंड है वो गांव वालों के लिए यूज हो सके। क्योंकि हम लोग गांव में सबको हम होम स्टे नहीं देते हैं, हम सिलेक्टेड कुछ को देते हैं, क्योंकि हम होम स्टे स्टार्ट करने से पहले एक कम्युनिटी कंसल्टेशन मीटिंग रखते हैं गांव वालों के साथ। तो हम चाहते हैं कि गांव में होम स्टे की वजह से गांव वालों में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम जो गांव के सरपंच होते हैं, हमारे यहाँ पे गोबा करके एक विलेज हेड बोलते हैं जिसको, उनके थ्रू हम कम्युनिटी कंसल्टेशन मीटिंग रखते हैं। तो वो लोग सेलेक्ट करते हैं गांव में किसको डिजर्विंग है, किसके पास जो ज्यादा इनकम नहीं होगा, तो उस हिसाब से हम होम स्टे सेलेक्ट करते हैं गांव वालों के थ्रू से। तो उसके बाद हमारा एग्रीमेंट होता है गांव वालों के साथ। तो हम जो है होम स्टे मटेरियल प्रमोट करते हैं उनको, और उनका जो रोल है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, और ये सब हम उस एग्रीमेंट में हम रखते हैं। और जो मैंने पहले बताया कि जो कंजर्वेशन फंड जो है उससे काफी
प्रोग्राम और प्रोग्राम जुड़े हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम है, कम्युनिटी बेस्ड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम, जो हमारे यहाँ पे याक वगैरह होते हैं गांव में, तो वो लोग समर पास्चर में जब उनको समर में लेके जाते हैं तो स्नो लेपर्ड और वुल्फ प्रीडेटर जो है वो किल कर उनको मार डालते हैं, तो उनसे गवर्नमेंट से उनको ज्यादा कंपेंसेट नहीं होता है। तो हमने कम्युनिटी बेस्ड गांव में ही हमने एक इंश्योरेंस प्रोग्राम सेटअप किया है। तो वो जितने भी कंजर्वेशन फंड होम स्टे से जाता है, तो वो कंजर्वेशन फंड का जो पैसा है वो होम स्टे के लिए इंश्योरेंस के लिए यूज होता है। और जो फिर जिस गांव में ये प्रोग्राम नहीं होगा, इंश्योरेंस का नहीं होगा, तो उस पे हम दूसरे प्रोग्राम में भी यूज करते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट में होगा, फिर स्तूपास जो रिस्टोरेशन होता है, यहाँ पे मोनेस्ट्रीज वगैरह होते हैं एंशंट, वो उनको रिस्टोरेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी हमें काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने पहले बताया कि हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जब हम कोई नया एक एरिया चुनते हैं होम स्टे के लिए, तो उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम फील्ड ट्रिप पे भी लेके जाते हैं, और पॉलिसीज होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, और साल के एंड में हम सीजन के एंड में हम हर गांव जाते हैं, और वहाँ पे हम जितने भी फीडबैक होते फॉर्म हमने पहले दिया हुआ होता है, वो सब हम कलेक्ट करके उसमें क्या क्या कंप्लेंट्स हैं, क्या है, वो हम सब कलेक्ट करके गांव वालों को समझाते हैं। तो अभी फिर आजकल ये आ रहा है कि बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से हर गांव में सबको होम स्टे प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो ये है कि वो लोग सिर्फ सामान देते हैं, लेकिन वो लोग ठीक से फॉलो अप नहीं करते हैं। तो जितने भी विजिटर्स वहां पे जाते हैं रैंडमली, तो वहां पे कंप्लेंट्स होते हैं, वो हमारे पास आते हैं। तो क्योंकि हमने होम स्टे स्टार्ट किया होता है पहले से, तो वो लोग सोचते हैं कि जितने भी होम स्टे हैं उनका ओनरशिप स्नो लेपर्ड है, तो बहुत सारे कंप्लेंट्स भी होते हैं, क्योंकि वो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते हैं, उनका कुछ पॉलिसी नहीं है। तो इस हिसाब से हमें काफी सारे कंप्लेंट्स आते हैं, तो हमें बताना होता है कि ये हमारा होम स्टे नहीं है। और एक है कि जब हम जैसे मैंने पहले बताया, विंटर में हमारा स्नो लेपर्ड का एक टूरिज्म हम प्रमोट करते हैं, तो काफी सारे टूरिस्ट विंटर में भी आते हैं स्पेशली स्नो लेपर्ड को देखने के लिए। तो उस टाइम जितने भी टूरिस्ट आते हैं, तो ऑब्वियस है कि जहाँ पे टूरिस्ट होते हैं वहाँ पे गार्बेज होते हैं, तो हम उस कंजर्वेशन फंड के थ्रू हम गार्बेज मैनेजमेंट पे भी काम करते हैं। तो हमने हर गांव में हमने एक ड्रम दिया हुआ है गार्बेज सेग्रीगेशन के लिए, ताकि जितने भी कूड़ा कचरा निकले उसको अलग अलग रख के हम सेग्रीगेट करके फिर हम रीयूज कर सके उसके लिए। शायद मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा काफी सारे और एजेंसी लोग हैं, वो सेटअप कर रहे हैं नया होम स्टेज। तो और जो हमारा विजिटर टूरिस्ट का जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो रहा है। पहले हमने जब होम स्टे सेटअप किया था, तो वो फॉरेन टूरिस्ट के व्यू में रखते हुए हमने किया था, क्योंकि वो उनका फिर अलग से प्रोग्राम होता है। तो अभी बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट आ रहे हैं, तो फिर हमने सोचा कि रीब्रांडिंग कर रहे हैं हम लोग। हम एक वेबसाइट बना रहे हैं हिमालयन होम स्टे के वहाँ पे है नाम से। तो फिर हम और कुछ एक हम फूड ट्रेल और क्राफ्ट ट्रेल भी कर रहे हैं गांव में, जो जितना एक हम पैकेज बना रहा है, लेकिन उसमें फूड ट्रेल का होगा। जो गांव में जितने भी फूड का फेस्टिवल होगा या फूड का उनके गांव में कुछ स्पेशल होगा, हम उसको एक 1 वीक का पैकेज बना के 2-3 गाँव को जोड़ के एक पैकेज बना रहा है, और एक क्राफ्ट का बना रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे क्राफ्ट होते हैं, तो उसका एक हम ट्रेल बना के हम एक नया रूट प्रमोट कर रहे हैं स्पेशली फॉर इंडियन टूरिस्ट के लिए। थैंक यू। फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। Thank you. Thanks a lot, Rigzin ji. Thank I'll you. just share a brief translation of this for some of you in English. So basically what Rigzin ji has been sharing is some of the work that they've been doing through the Himalayan Homestay, which is one of the first initiatives that they started. The objective of the initiative was to find a way to protect the wildlife, animals, especially the snow leopards, and to also provide local livelihood to the people,
so that more and more people are able to experience the authentic Ladakhi culture without impacting the environment. With more and more tourism becoming a part, a lot of local people have started coming, trekkers, a lot of them have started coming in, which has now caused some sort of imbalance there. And the local community owners weren't able to earn a lot because the hotel owners were profiteering from that. So, which is where the Himalayan homestay came to the picture. They were able to do this through the tourism industry. They were able to provide a lot of employment to the villagers there. And currently, there are some issues that they're facing due to many companies and government coming and creating homestays. There are a lot of other complaints that there isn't enough training that happens there. So this is one issue that they're currently trying to solve. One thing that they're focusing on at the moment is how to, target for more Indian tourists. There is an increase in the number of Indian tourists who come there who want to go on a food trail and a craft trail. So now their intent and now their plan is to curate more such experience for the Indian tourists and the Indian travelers. So this has been a gist of what Rigzinji has shared. So thanks a lot, Rigzinji. Really kind of you to join us today. I would now like to introduce our next speaker. So our next speaker is actually, there are two of them, Anil and Rekha ji from Sahodaya, Bihar. Anil ji और Rekha ji जो है, they are activists, क्रांतिकारी and administrators है सहोदया community के, जो वातावरण and nature centric life learning एक center है. सहोदया एक ऐसा इनिशिएटिव है जो एक होलिस्टिक वातावरण बनाता है सभी के लिए. वो उसका प्रयत्न करता है, इंक्लूडिंग फॉर द जो वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए, उनको रहना, उनका पढ़ाई, उनकी जो लाइवलीहुड रोजी रोटी है, वो सब जितना हो सके उतना उसको सस्टेनेबल तरीके से करे. सहोदया का एक अटेम्प्ट ये रहा है कि जो बच्चे हैं वहाँ पे और जो बड़े हैं उनको कम्युनिटी लिविंग और कलेक्टिव लर्निंग का एक एक्सपीरियंस दिया जाए, एंड वातावरण का किस तरह से एक कंजर्वेशन हो सकता है उसका भी एक एक्सपीरियंस दिया जाए. आज फिलहाल एट प्रेजेंट सहोदय में व्हाट जो वो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो लोकल कम्युनिटी है, जो वहाँ के रहने के लोग हैं, उनके साथ काफी सारे अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं ग्रीन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड का. एंड वहीं के जो आसपास अवेलेबल रिसोर्सेज है वहीं पे जो मिलता है उसी चीजों से. So Anil and Rekha are activists and administrators who are part of the Sahodaya. It's a community nature centered life learning center. Sahodaya is an initiative to develop a possible holistic environment for all of us, including children of the villages, to live, learn and generate our livelihood as a community in sustainable ways. Sahodaya also attempts to provide children and adults with experiences of community living, collective learning, environmental conservation, and community-led sustainable livelihood. At present, they've been trying to involve the local community to explore various possible opportunities through which they can generate green and sustainable livelihood with the available resources and the available skills. So may I now request both Rekha ji and Anil ji to take over. आपको मेरी आवाज सुनाई दी? नमस्ते सब लोगों को. नमस्ते. नमस्ते. क्या सहोदया एक्चुअली एक समुदाय है जिसमें हम लोगों की एक प्रयास है किस तरह से हमारी जो जीवन है और एक समाज के साथ, एक वातावरण के साथ आगे की ओर बढ़े. तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2015 में 16 में शुरू की थी. उस समय हमने बहुत अलग अलग जगहों पे यात्रा भी काफी किया था ताकि हमें समझ पाए कि आखिर हमारी जो जरूरतें हैं और हम कैसे एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं और एक अच्छी समुदाय के साथ रह सकते हैं और कैसे समुदाय हो जो बेहतर समुदाय हो. काफी यात्रा करने के बाद हमने बिहार के गया जिला में एक सहोदय ट्रस्ट करके शुरू किया
जिसका सहोदय का जो मीनिंग है वो है एक साथ सबका उदय, सहुदय, साथ में सबका उदय। तो इस शुरुआत के साथ हमने जब जब गया में हमने आया और इस गांव में आई तो यहाँ पर हमारी बहुत सारे समस्याएं देख रहे थे और हम लोगों को भी लगा कि जो जगह है हम जिस चीज और जो तलाश कर रहे थे वही शायद यहाँ पे है और हम इसके साथ शायद अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो गांव वालों से बातचीत हुई और गांव वालों ने भी अपनी सहमति जताई और हम लोग को स्वागत किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे उन लोगों के साथ रहना शुरू किया और धीरे धीरे वो सहोदय शुरू हुआ और आगे की ओर बढ़ रहा है और अभी 4-5 साल हो गए हैं और काफी अच्छा है कि लोगों का काफी सहयोग भी मिल रहा है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों का मुख्य था कि कैसे शिक्षा जो है और जीवन से कैसे जोड़ा जाए। ऐसे तो बहुत लगता है कि शिक्षा जीवन के लिए ही है और जीवन के साथ ही है, लेकिन हमें बहुत सारी डिफरेंसेस दिख रहे थे। उस भिन्नता को कैसे कम किया जाए और जो हम जी रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके साथ अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाए, इन सबों के साथ हमने शुरू किया। और गांव वाले जो हैं, जो जिनकी जो जरूरतें हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, उनके साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उनको किस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं या उनके साथ आगे बढ़ेंगे। और बच्चों के साथ भी ये था कि बच्चे जो हैं वो आखिर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, क्या उससे वो बेहतर कुछ रिजल्ट उनका आ रहा है या फिर वो उसी सिस्टम में जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें अंत में लग रहा है कि कुछ हम लोग मिसिंग है या कुछ छूट रहा है पीछे। तो इन सबों को लेकर के हमने शुरू किया और जो हमारे पास वातावरण है आसपास के, उसमें भी बहुत सारे मिसिंग हमें दिख रहे थे। बहुत सारे प्रजातियां हैं जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के, वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। मिट्टी खत्म होती जा रही है, मिट्टी की जो जीवन है वो, तो वो सब हम कैसे बचा सकते हैं, उनके साथ कैसे एक अच्छी हेल्दी जीवन शुरू कर सकते हैं। तो इन सब प्रयास के साथ हम लोगों ने शुरू किया और अब मुझे लगता है आगे अनिल जी बताएंगे तो अच्छा होगा। देखिए, संक्षिप्त में कोशिश करूंगा बताने का। देखिए, सहोदय बेसिकली एक होलिस्टिक जीवन की तलाश या प्रयास है, जिसमें हम लोग को लगता है कि रिलेशन को समझने की जरूरत है और जीने की जरूरत है। हम लोग जब दिल्ली में रह रहे थे तो हम लोग को यही लग रहा था कि सभी सुविधाएं हैं और अचीवमेंट्स हैं, लेकिन हम लाइफ को रिलेशंस के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं और जी नहीं रहे हैं। सो अपने रिश्तों को हम जी नहीं रहे हैं और रिश्तों को भी समझने के लिए हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं अभी भी कि रिश्ते का मतलब ये नहीं कि किसी केवल इंडिविजुअल के साथ रिश्ता इज मोर लाइक कलेक्टिव, मोर सामुदायिक रिश्ता। और एक उसमें एक पूरा सिस्टम है, एक नेटवर्क है उस रिश्ता में, जिसमें एक साइकिल भी है तो जीवन का, तो उसको जी नहीं पा रहे हैं। और वो जीवन का मुझे लगता है कि कुंजी है। तो उसके लिए और उससे बात करने से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अनुभव मिलना जरूरी है। कम से कम हमें वो चीजें नहीं मिल पाए तो हमारे आने वाले जनरेशन को मिले और बच्चों को मिले, ताकि वो रिश्तों को समझे। आज जो दुनिया में क्राइसिस है या क्लाइमेट चेंज का या जिस तरह की चीजों का, तो उसमें यही है कि एक रिलेशन का जो एक्सपीरियंस है, एक नेटिव सेंस ऑफ रिलेशन, वो मिसिंग है। तभी तो हम एक दूसरे को के प्रति एंटागोनिस्टिक हैं, अपने साथ भी बिटवीन ह्यूमंस आल्सो एंड नॉन ह्यूमंस आल्सो। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि हम कैसे एक्सपीरियंस करें। तो सहोदय एक प्रयास था जिसमें हम बच्चों के साथ मिलके कैसे अपने रिलेशंस विद द कम्युनिटी, ह्यूमन कम्युनिटी एज वेल एज नॉन ह्यूमन कम्युनिटी, जो प्रकृति है और भी जीव जंतु हैं, है ना, उनके साथ वो रिलेशन को कैसे जिएं और उसको कैसे शिक्षा में शामिल करें। क्योंकि शिक्षा केवल इंडिविजुअलिज्म को फीड करे तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसीलिए हमने
हमने कोशिश किया कि कैसे बच्चे साथ रह के मिल के एक कम्युनिटी की तरह जिए, और जो इस कम्युनिटी की जरूरतें हैं या काम है, उस काम को साथ मिलके करें और अनुभव करें। इसमें कोशिश करना है कि हम अपनी सीमा को भी पहचानें कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, और क्या-क्या जो अपॉर्चुनिटी हैं इसमें जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी सहोदय में 22 बच्चों के साथ हम लोग हैं, तो इसमें हम लोग बच्चे अपने तरीके से रहते हैं, बहुत हम लोग उसमें गाइडलाइंस नहीं है। सो एक काइंड ऑफ कम्युनिटी है जिसमें हम लोग बच्चे अपने गति से घर के सारे काम भी करते हैं, ताकि उनको एक हाउस होल्ड एक्सपीरियंस मिले एक्टिविटीज का, है ना। उसमें ये गैप ना हो कि हाँ लड़का है या लड़की है तो उसको वो काम नहीं करना है या लड़की को वो काम नहीं करना है। तो ये मैं बताना नहीं चाह रहे थे हम लोग चाह रहे थे बच्चे अनुभव से सीखें कि हमारे लिए कोई काम जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए, घर का काम। उसी तरह से खेती का काम है, तो खेती में भी हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं, ताकि बच्चे सस्टेनेबल फार्मिंग समझे, देखें और उसको अनुभव करें खुद करते हुए, जितना उनकी क्षमता है और उनका इंटरेस्ट है उसके साथ मिलके। तो उसी तरह से हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक नेचुरल फार्मिंग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ताकि बच्चों को खेत के बारे में और खेती के बारे में एक रियल एक्सपीरियंस हो, जो कि यहाँ के गांव के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांव में खेती सबसे मुख्य लाइवलीहुड का सोर्स भी है और एक्टिविटी भी है। तो उसी तरह से बच्चों को हम लोग खेती से जोड़ते हैं। उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को बच्चे समझें, और वो समझने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे जो खासकर इंडिजिनस है उस पेड़ पौधों को बचाते हैं, प्रमोट करते हैं, और आसपास के जंगल में उनके बच्चों के साथ घूमते हैं, ताकि वो उसको एक्सपीरियंस करे, समझे, और फिर उसके साथ जीना सीखे और उसको प्रोटेक्ट करे। हालांकि ये बहुत टफ चैलेंज है, क्योंकि आसपास की कम्युनिटी आजकल सभी जगह पे पेड़ पौधे काट रही हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें उस तरह से हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको बच्चों के साथ मिलके, क्योंकि ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी पर लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें इसको, हमारे सामने ये ऑप्शन नहीं है कि हम इसको खत्म करें। सो हमें धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, कैसे हम वी कैन को एग्जिस्ट। तो सहोदय का इसका मेन वन ऑफ द मीनिंग्स है कि को एग्जिस्टेंस विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो हम लोग हर साल कोशिश करते हैं बच्चों के साथ, हर साल डाइवर्स इंडिजिनस स्पीसीज के जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो लगाते हैं और बच्चों के साथ मिलकर बचाते हैं, और उनको वो एक्सपीरियंस मिलता है। गांव के लोगों के साथ भी मिलकर यही सारे काम करते हैं कि हम कैसे इन पौधों के बारे में और ये जो नेटिव जो इंडिजिनस प्लांट्स है उसको बचाने की कोशिश करें, और जैविक खेती के बारे में भी गाँव वालों के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा अपने लाइवलीहुड को लेकर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बाकी संस्थाओं की तरह हम लोग भी बाहर के फंडिंग पे डिपेंडेंट रहें, और फिर एक डिपेंडेंस उसमें बना रहे, क्योंकि रिश्तों पे जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा रिश्तों में मुझे लगता है कि मनी हैज प्लेड अ रोल। तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि उसका यूज को रिड्यूस करें आपस में एक दूसरे के साथ, और जितना मिनिमम उसको हम लोग उस पर निर्भर रहें। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खेती इस तरह से करें, इस तरह के पेड़ पौधे लगाएं, इस तरह के कुछ कार्य करें कि हमें आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट का एक रिलेशन हो, ताकि एक यूनिफॉर्म रिलेशन ना हो जो कि मनी रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह से लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर और बच्चों के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे कुछ काम शुरू करना चाहते हैं और कर रहे हैं, जिससे कि हमारे हमारे जो इन्वायरमेंट है, लोकल नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, खेती है और हमारी लाइवलीहुड है, ये तीनों को बेहतर दिशा मिल सके। इसीलिए हमने खेती से जुड़ा लाइवलीहुड सोचा है, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मिलेट फार्मिंग यहाँ धीरे धीरे लोग भूल गए हैं, तो हम बच्चों के साथ मिलके मिलेट को प्रमोट करने खेतों में लगाते हैं, और मिलेट बेस्ड कुछ फूड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और गांव में लोगों के साथ इस पे साझा करते हैं और बताते भी हैं कि इसमें हम लोगों को हर तरह से फायदा है। क्लाइमेट चेंज से लेकर एक लाइवलीहुड जो लोकल सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं, वो सब मिलेगा। और हमारी मिट्टी में जब हम लोग मिलेट फार्मिंग करेंगे तो हमारी मिट्टी में हमें ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं है,
हमें ज्यादा पेस्टिसाइड देने की जरूरत, किसी तरह के पेस्टिसाइड देने की जरूरत नहीं है। तो इससे खेती में भी उन्हें मदद मिलेगा और हेल्थ वाइज भी न्यूट्रिशन उसका बहुत हाई लेवल है। तो वो सब हम देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। हम लोग बच्चों के साथ मिलके ये सब समझने के लिए पिछले साल ही लगभग 3 महीने का साउथ इंडिया में ट्रिप किए थे, जहाँ पे इस तरह के काम ऑलरेडी हो रहे हैं, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड। तो उस तरह से नवदर्शनम है या मर्दम है, कुबदम है, और भी कई हैं, तुलीर है, पैर है, सोफा में। तो उस तरह से बच्चों के साथ मिलके हम लोग गए, क्योंकि बच्चों को हम चाह रहे थे कि इस तरह के कहीं पे काम हो रहे हैं तो उसका अनुभव उनको मिले। ठीक है, बिकॉज जब तक उनको अनुभव नहीं मिलेगा हमारे बोलने से, हमारे पहले भी कई संस्थाएं यहाँ पे काम कर चुकी है, बहुत सालों तक काम कर चुकी है। तो उनका बहुत रिजल्ट, वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो खुद बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहे हैं, खुश नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग केवल अगर बातें बताएं और सिद्धांत की बातें करें और इन उपदेश दें तो उससे काम नहीं चलेगा। हमें बच्चों को रियल एक्सपीरियंस देना पड़ेगा कि अभी वास्तविक हकीकत क्या है हमारी सोसाइटी की, हमारी मानवता की, हमारे पर्यावरण की, और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। हर चीज हमारे लिए संभव नहीं है, ये भी इस बात को रियलाइज करके चलना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये तो बिना एक्सप्लोर करे, बिना रिस्क लिए आप नहीं समझ सकते। तो हमें घूमना, समझना और देखना, एक्सपीरियंस करना, एक्सप्लोर करना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे रागी का लड्डू, रागी का नमकीन और रागी का हलवा ये सब बनाना शुरू किया है हमने। और उसी तरह से जौ का भी कुछ कभी कभी बनाते हैं हम लोग, लड्डू टाइप का, या उसका हलवा भी बनता है। जौ भी यहाँ से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो और जो देसी धान है उसको हम लोग चाहते हैं कि अपने गांव में लोग यूज करें, क्योंकि बाहर से हाइब्रिड लाते हैं तो हाइब्रिड हमारे मिट्टी की क्वालिटी के लिए और न्यूट्रिशन के लिए अच्छा नहीं है, और बहुत बड़ा खतरा है। जब मिट्टी पे खतरा है तो पूरी धरती पे खतरा है। तो इसके ये कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें इसको ऐसे ही रहने दें। तो ये सब मिलके हम लोग बच्चों के साथ एक कैंपेन करते हैं, गांव के साथ मिलके बातचीत करते हैं और प्रोग्राम करते हैं, और जहाँ पे इस तरह के काम हो रहा है वहाँ भी बच्चों को ले जाते हैं, गांव के लोगों को भी ले जाते हैं, ताकि वो इसको समझें कि कैसे हमें अपनी मिट्टी को बचाना है, हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, और कैसे हम इन लोग के साथ, इन सब चीजों के साथ कोएग्जिस्ट करें। तो इस तरह से हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें बच्चे बेसिकली एक्सपीरियंस और एक्टिविटी से सीखते हैं। किताबें भी हैं उनके पास और किताबों पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन मोस्टली दे लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज। और कैसे एक कम्युनिटी लिविंग हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कैसे हम लोग एक कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं, इसकी कोशिश हम लोग धीरे धीरे बच्चों के साथ कर रहे हैं। मुझे लगता है काफी। थैंक यू। वहां पे बच्चों की आवाज भी आ रही है, कैन यू, आप उनको भी जरा कैमरा में आने कहिएगा। आई थिंक वो भी है आपके वहाँ पे। हमारे यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया है, लाइट 10 दिन से नहीं है, और बच्चे खाना खाते हैं शाम होने से पहले, तो चांद की रोशनी में खाना खा रहे हैं। ओके, खाना खा रहे हैं वो लोग नीचे बाहर। मैं बुला सकता हूँ, बैठे हुए थे शुरू में, लेकिन अभी खाना खाने का समय हो गया, हालांकि लेट हो गया, इतना अंधेरा में नहीं खाते हम लोग। हाँ, शायद शाम का भी समय है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी और रेखा जी। तो आई जस्ट शेयर अ ब्रीफ अपडेट। सहोदय जो है, इट्स अ कम्युनिटी, लाइक आई शेयर्ड इन द इंट्रोडक्शन. The intent of Sahoday is to shine together and to rise together. Anil ji and Rekha ji have shared that the main aim was to connect education to our life and to our struggles. So the question is the education that you're getting, is it improving the students' lives, and is it in tune with their surroundings? So the intent is, how can kids learn from their own surrounding? How do they understand relationships? How can they understand collective lives? So for that, what Anil ji and Rekha ji have been doing is they've been trying to build a community where they all live a more holistic life. As part of this, they've been teaching children about sustainable farming, biodiversity, and a lot of other important life lessons. One main thing that they've been trying to impart is that education is not an individualistic thing. It's not an individualistic value. It's supposed to be a community value that you get by interacting with your own locality. So that is one important part of Sahoday's regular activities and Sahoday's regular work. It's also about creating coexistence with other human beings and non-human beings.
and they are also trying to teach how can kids be sustainable and how can they, tackle serious issues like climate change. So therefore, it is important that kids, the learning that they get is more rooted on ground and is not, in a more superficial environment. So बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी एंड रेखा जी. हाय, हेलो, हाय है कॉल पे. बहुत बहुत धन्यवाद आप आए. बहुत बहुत धन्यवाद, आपको देख के बहुत अच्छा लगा. नमस्ते. ओके, सो बहुत धन्यवाद रेखा जी और अनिल जी. I think I would now like to introduce our next speaker. So thank you once again. Now I'll just start with Sandeep ji. Sandeep ji, who is going to be our next speaker. संदीप जी जो है उनको बर्डिंग में बड़ी दिलचस्पी है. जब वो 13 बरस के थे तभी उन्होंने बर्डिंग शुरू किया था अपने ही गांव में अपने आप से सीख के. उन्होंने जो है फैसिलिटीज वगैरह जो है उन्होंने अपने आप से ही खोजा और अपने आप से ही शुरू किया था. एंड खुद सीखने के बाद अभी वो जो वहां गांव के जो बच्चे हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनको वो अभी गाइड करते हैं. एंड उनका एक ट्रेनिंग होता है जो संदीप जी करते हैं. जब एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई थी तो बर्ड हंटिंग जो है वहां पे बैन हो गया था. तो उस मुद्दे को उन्हें टैकल करने के लिए उन्होंने एक होम स्टे भी शुरुआत किया है. होम स्टे की भी शुरुआत की है जहाँ पे वो जो उनके टूरिस्ट हैं उनको एक वॉक पर ले जाते हैं, उन्हें घर का खाना वगैरह खिलाते हैं एंड उन्हें उनका वातावरण दिखाते हैं. Sandeep ji, like I mentioned in Hindi, I'll translate it in English as well. Sandeep ji must have been 13 years old when he started birding after learning on his own. And now what he's been doing is he's been guiding the local boys in the village who are unemployed. He's been training them to how do they go for birding, how can they do this in a more serious and a sincere way. When employment started, bird hunting in the village was banned. So what they've now started doing is they've started a village homestay. Through the village homestay, they've been giving all the tourists a walk of the village and also giving them home cooked meals. So संदीप जी जो है कुंभार गांव के है भिगवान. संदीप जी मैं रिक्वेस्ट यू, क्या मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ प्लीज. संदीप जी आप म्यूट पर है, आपको अनम्यूट करना होगा. हेलो. हाँ संदीप जी आपकी आवाज आ रही है मुझे. हाँ, तो क्या है कि मेरा जो गांव है एक कुंभार गांव, बस एक जो पूना सिटी है, पूना से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गांव है एक छोटा सा. पहले तो इस गांव में जो भी है यहाँ के गांव वाले हैं वो फिशिंग करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिशिंग जो है थोड़ी कम होने लगा. और जब मैं प्राइमरी स्कूल में जाने लगा तो एक मेरे टीचर थे, तो उनको बर्ड्स की काफी जानकारी थी. तो कभी कभी मुझे भी अपने साथ ले जाते थे, थोड़ा बर्ड्स के बारे में जानकारी देते थे. तो ऐसे ही और मेरा जो पुराना जो फिशिंग का ये था, जो पिताजी मच्छी पकड़ के सब परिवार का ख्याल रखते थे, तो कभी कभी मुझे भी वो साथ ले जाते थे. तो धीरे धीरे मुझे बर्ड्स लगा. तो जो यहाँ जो रिवर है भीमा रिवर, उसमें कई सारे बर्ड्स थे, उसमें से एक इम्पोर्टेंट बर्ड्स है फ्लेमिंगोस. तो वो मुझे अच्छी लगने लगी. तो धीरे धीरे मैं भी बर्ड्स के बारे में थोड़ा जानने लगा, तो ये करने लगा. लेकिन क्या हो रहा है कि उस समय इतना जानकारी नहीं था बर्ड्स के बारे में, बस बर्ड्स देखना अच्छा लगता था. तो बाद में एक पूना के यहाँ टूरिस्ट आए, तो उनका नाम अभी इतना याद नहीं, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मुझे वो बर्डिंग करना है. तो मैंने अपने पिताजी के जो फिशिंग का बोट था उसमें बिठा के उन्हें लेके गया, उन्हें कई सारी बर्ड्स दिखाए उन्होंने. तो तब उन्होंने मुझे कुछ बर्ड्स के नाम बताए, तो वो नाम मुझे थोड़े से याद रहे. तो चले गए. जब वापस आए तो वापस आके उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए. तो जो छोटा था और मुझे 50 रुपए तब तो काफी थे मेरे लिए. तो ऐसा करते करते फिर उनके तब तो मोबाइल नहीं, कुछ कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं था. तो फिर वो चले गए. फिर उनके कुछ फ्रेंड्स आ गए. तो एक संदीप करके नाम का एक लड़का है, तो मेरे यहाँ एक पानी के किनारे एक छोटा सा झोपड़ी था. तो फिर उनके कुछ फ्रेंड्स आए, तो उनको मैं थोड़ा सा गाइड करने लगा. उनके थ्रू मुझे कुछ बर्ड्स के नाम याद आने लगे, तो जानकारी मिलने लगी. तो धीरे धीरे ऐसा 2-3 साल चले गए, तो मुझे थोड़े पैसे मिलने लगे. तो पैसे मिलने लगे तो मुझे अच्छा लगा. तो मेरे भाई को साथ लेके जाने लगा, तो भाई को भी थोड़े से पैसे मिलने लगे. तो मेरे के दिमाग में एक आया कि अच्छा है. लेकिन तब ये सबसे सताने वाली बात थी कि यहाँ जो हंटिंग, जो यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो फिशिंग के साथ काफी बर्ड जो बाहर से बर्ड्स आते थे उनको मार के खाना वगैरह, वो सब यहाँ चलता था. लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था कि लोग जो है बर्ड्स को मार के खाते. लेकिन तो एक तो मैं उम्र में छोटा था, कुछ कर भी नहीं सकता. और लोग
थोड़ा सा एक बोलते कि जैसे मैं जो शुरू में बहुत घूमता था ना, पानी के किनारे घूमता था या पहाड़ों में घूमता था या आजू बाजू के, तो लोग जैसे पागल से एक बोलते कि पागल जैसा लड़का है। लेकिन शुरू में लोग सुनते नहीं थे, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आया अगर मुझे पैसे मिलने लगे, अभी गांव के बच्चों को इन्वॉल्व करूं तो उन्हें भी कुछ ये गाइड के थ्रू पैसे मिलेंगे। तो मैंने 2006 में एक अग्निपंख नाम का एक टीम बनाया, अग्निपंख नाम की संस्था बनाई। सब हम जब ऐसे जो लड़के थे, ऐसे 15 साल 16 साल के जो लड़के थे, सबको मैंने इकट्ठा किया, उनको बर्ड्स के बारे में जानकारी दी। तो वो भी फिर कुछ लोग आने लगे, तो लोगों के साथ उन्हें भी भेजने लगा, तो उन्हें भी कुछ पैसे मिलने लगे। तो पैसे मिलने लगे तो उनके जो परिवार वाले हैं, तो उनके परिवार वालों को हम समझाने लगे, देखो आपके लड़के को पैसे मिल गया, बर्ड्स को मत मारिएगा, और बर्ड्स बढ़ेंगे तो और लोग आएंगे तो आपके बच्चे को और रोजगार मिल जाएगा। तो धीरे धीरे मेरा टीम भी बढ़ता गया और जो लोग हैं टूरिस्ट लोग वो भी काफी आने लगे। तो जो शुरू में तो हम खाली बोट ही करते थे, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि नहीं, जो टूरिस्ट आते हैं उनको कुछ खाने के लिए रहने के लिए भी चाहिए। तो मैंने 2009 में मेरा खुद का एक 2 रूम बनाए और होम स्टे शुरू किया, घर का खाना शुरू किया। ऐसे 2-3 साल चले गए और जैसे धीरे धीरे मेरा टीम बढ़ता चला गया। फिर हमने एक जैसा समुदाय से किया, मैं 20-25 लड़के फिर शुरू में आए तो प्लांटेशन करना शुरू किया। जो उनका बर्ड्स का जो इंजोर्ड मिले उनको थोड़ा सा ये करना, थोड़ा सा अच्छे करके छोड़ देना, ये सब शुरू किया। तो धीरे ऐसे करते फिर मोबाइल आ गए, मोबाइल में फिर भिगवण का नाम जो है, इस गांव का नाम थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा। तो थोड़ा सा एक अच्छा लगने लगा कि वो बाहर से भी, जो पहले जो क्या है कि अभी पुणे मुंबई से टूरिस्ट आते थे, जैसे कि धीरे धीरे सबको पता चला कि भिगवण करके एक जगह है, तो धीरे धीरे जो हमारे ऑल इंडिया से लोग आने लगे, जैसे कि अपने दिल्ली से हो, कोलकाता हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, सब जगह से यहाँ टूरिस्ट आने लगे। तो जो हमने जो होम स्टे शुरू किया था, उनके साथ जो गांव के आजू बाजू महिला है उनको भी थोड़ा सा जो खाना बनाने आती थी, उनके रोटी बनाती थी, बर्तन मांजना है, जो गांव के लोकल प्रोडक्ट्स है जैसे फ्रूट्स है, सब्जियां है, वो भी लोग यहाँ बेचने लगे। तो जैसे कि यहाँ का जो इको टूरिज्म है वो बढ़ने लगा गांव का। जो पहले गांव झोपड़े होते थे, अच्छे घर बन गए लोगों के। फिर धीरे धीरे 2010, 11, 12 में लोगों ने अपने अपने 2-3 रूम बनाना शुरू किए। और एक जैसे कि मेरा खुद का होम स्टे था, फिर बाद में जैसे 3-4 बन गए, और जैसे जैसे साल बढ़ता गया फिर धीरे धीरे होम स्टे भी बढ़ते गए। तो एक जो गांव के जो बेरोजगार लड़के थे उनको एक अच्छा रोजगार मिलने लगा। और सबसे अच्छी बात थी कि जो भी इस एरिया में जितना भी हंटिंग होता था, जो बर्ड्स के मार के खाना वगैरह, वो यहाँ का जो पूरा ही बंद हो गया। 2012-13 तक जो यहाँ का हंटिंग है पूरा बंद हो गया। ये सबसे मुझे जो बुरी बात थी, जो मेरे लिए, जो यहाँ का हंटिंग वो बंद हो गया। और सब लोग जो भी यहाँ का लोकल लोग है, ये कुंभार गांव के, सभी अच्छे से बर्ड्स का ख्याल रखने लगे। धीरे धीरे ये जो कुंभार गांव का जो है, तो एक जो कुंभार के बाजू का डालच करके गाँव है, डिक्सल करके गाँव है, भिगवण करके गाँव है, सब में ये लोगों में थोड़ा सा ये होने लगा कि वो एक ऐसी जगह है। यहाँ के जो गाइड लोग है वो लोगों को गाइड करते हैं, उनको पैसे मिलते। तो धीरे धीरे जो बाजू वाले गाँव है उन्होंने भी ये अपना ट्रेन शुरू किया। तो कुछ लोग मेरे पास आने लगे कि हमें भी थोड़ा सा सिखाओ, हम भी थोड़ा गाइड करेंगे। तो डिक्सल के कुछ लोग थे, उन्हें ट्रेन कर लिया गया। भिगवण कुछ लोग थे, भिगवण लोगों को ट्रेन किया। और चिंचोली डालच के उनको ट्रेन करके हर एक जगह है जो लोग जाने लगे। और हर एक जो हमारे गांव था, फिर ऐसे करके 5-6 गांव है। ये 5-6 गांव जो गांव के जो लड़के हैं, जो उनको रोजगार नहीं था, उनको रोजगार मिलने लगा। तो ऐसा जो धीरे धीरे अभी हम तो क्या करते कि अभी ये तो रोजगार ठीक है। फिर जो गांव के अभी आजू बाजू बहुत सारा जमीन था जो खाली था, तो जो हमारा जो संस्था है अग्निपंख, तो उससे हमने क्या किया, थोड़ा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, जो बाजू में रखना शुरू किया। फिर जहाँ भी हमें जगह मिले उनको वहाँ थोड़ा सा प्लांटेशन करना है। फिर जो भी कुछ जो हमारी जहाँ कुछ ऐसी संस्थाएं आते हैं ना बाहर से भी, जो कुछ संस्था, जो बच्चे संस्था जिनके ये नहीं है, तो वहाँ भी हम थोड़ा जो हमारे ग्रुप पे जो भी पैसा बनता हम उन्हें प्रोवाइड करने लगे। तो ऐसा करते करते हमारा जो टीम है तो अच्छा ग्रोथ होने लगा। और आज जो हमारा छोटा सा गाँव है भिगवण, जो भिगवण से कुंभार गाँव, जो पहले किसी को मालूम भी नहीं था, और आज वर्ल्ड मैप पे, वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। तो इतना ही ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। थोड़ा अगर इसको मैं I'll just share what he shared. I'll give a gist of what Sandeep ji has shared. So he started birding when he joined his father, who was a fisherman in the lake, and that's when he got really interested with birds.
and there were also other birders who used to join him. So he was really interested, so he used to ask them, what is the name of this bird, what is the name of that bird, and that's how his interest started increasing. Apart from that, what he's also been able to do is through his team Agni Pankh, they've slowly started nurturing another interest in birds and another interest in the local birds, which is flamingo. So what they would do is they would guide the birders and help them earn some money through that. They would take them to the villages, they would show them the village lifestyle, they would help them eat local cooked food there. The main intent behind this was if they could stop the killing of these birds, because there used to be a huge amount of killing that would happen. And through this experience, they figured out that conservation, the process of conservation is not something that happens, it's not a one person thing, but the entire community has to get involved in it. And it's a rather slow process. But while they started slow, they're right now on the global map. So they've gone beyond. So बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शेयर किया. What I'll now do is मैं अभी हमारे अगले स्पीकर को इंट्रोड्यूस करूंगा. Our next speaker is ममता जी. So ममता जी जब छोटी थी, कुछ ट्रैवलर्स आए थे उनके गांव में, एंड उन्होंने वहां पे देखा कि पाइन नीडल्स जो है वो बहुत सारा है, खूब उसकी व्यवस्था बहुत है. मगर एक पाइन नीडल्स की एक दिक्कत यह है कि वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, इट्स अ न्यूसेंस जो है. मगर ममता जी के गांव में उन्होंने क्या किया, वो उन पाइन नीडल्स के साथ काम करने लग गए. तो काफी सारे जो मेहनती जो लोग हैं गांव के, वो सब इकट्ठित हुए एंड इकट्ठित होने के बाद उन्होंने ये सीखा कि जो पाइन नीडल्स होता है उसका किस तरह से रोज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फैशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रोज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कैसे बनाए जा सकते हैं. इनिशियली तो ये अपने दोस्तों को गिफ्ट किया करती थी, मगर जैसे गिफ्ट करती थी उनके इंक्वायरीज बढ़ते गए, उसमें लोगों की रुचि और बढ़ते गई. तो फिर उनको बहुत सारे इंक्वायरीज आने लगी फॉर प्रोडक्ट्स, उसको प्रोडक्ट के तौर पे और बहुत सारे लोग उनसे इंक्वायर करने लगे. तो देन उन्होंने जो उनका पैशन है उसी को उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया है. आई जस्ट शेयर एन इंग्लिश इंट्रोडक्शन. So when Mamta was young, a few travelers visited her village and they realized the abundance of pine needles in and around the village. Sometimes pine needles are a huge nuisance to everybody. But fortunately, the villagers, the hardworking villagers in a very short span learned how to work with these pine needles and how to make and weave them into objects of necessity, into objects of fashion, for crafting, say, different fashion items. Initially, though, when she started out, she used to gift all of these to her friends. But slowly she realized that there were a lot more inquiries coming in for our products and people started placing larger orders. So that's when she realized that this is something that could, be converted into a little more serious profession itself. So she's now changed her passion and it's now become her profession. So Mamta ji, may I now request you to please take over. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम ममता है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से. मैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की आर्टिस्ट हूँ. मैंने ये काम अपने घर से अपनी मम्मा से सीखा था. उन्होंने जो ट्रेवल्स आए थे हमारे यहाँ पे ब्लॉक में, जिन्होंने विलेज की कुछ लेडीज को ट्रेनिंग दी थी. बट मेन रीजन ये था कि ट्रेनिंग देने के बाद विलेज की लेडीज ने सीख तो लिया, बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया कि वो इन प्रोडक्ट्स को कहाँ पे सेल करें. तो ये काम ऑलमोस्ट खत्म होने को ही था. तो मैं जब घर आफ्टर स्टडी के बाद तो मैंने देखा मम्मी ये काम घर के लिए बनाते थे, जो प्रोडक्ट्स बनते थे घर के लिए, जैसे मैट हो गए, लॉन्ड्री बास्केट होगी, डस्टबिन हो गए, तो ये सब घर के लिए बनाते थे. फिर मुझे ऐसा लगा क्यों ना हम इसे एक मार्केट में उतारा जाए, क्यों ना हम इसे मार्केट सेल के पर्पज से उसको मार्केट में रखा जाए. एक तो इसमें इनकम भी अर्न होगी. तो सबसे पहले जब मैंने इस काम का स्टार्ट किया था तो मेरा मोटिव सिर्फ खुद को इंडिपेंडेंट बनाना था और अपनी फैमिली को हेल्प करना था, और थर्ड मोटिव था कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना था. तो 2017 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था. मैंने जब ये काम अपनी मम्मा से सीखा तो सबसे पहले मैंने कुछ गिफ्ट्स अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आसपास जो भी है वहाँ पे, और धर्मशाला में कुछ शॉप्स है, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, वहाँ पे रखने स्टार्ट किए. इस काम को करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए. फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज हुई कि हमें ये प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं और हमें वो काफ़ी लोग मुझे ऑर्डर्स देने लगे.
फिर उसके बाद मैंने अपने ही गांव की लेडीज के साथ उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, और कुछ एनजीओज है जिन्होंने मेरे साथ टाइप किया कि आप इन महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे सकते हो। तो मैंने 3-4 एनजीओज में ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, जैसे संभावना एनजीओ है, जागोरी एनजीओ है, और यहाँ पे एक पीपल फर्म है, और सरनिटी। अलग अलग विलेज में जाकर मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट मैंने 100 से ज्यादा विलेज की लेडीज को ट्रेनिंग दी है, और जो अभी जो मेरे साथ लेडीज काम कर रही हैं वो मेरी ही विलेज की है जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सबसे पहले तो मेरा मतलब इस काम को आगे लेके जाने का मोटिव ये था कि मैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पाइन लीव्स जो होते हैं वो अबंडेंस में पाए जाते हैं। जो समर के टाइम में यहाँ पे आग लगा देते हैं, इससे इन्वायरमेंट काफी पोल्यूट होता है, और जो जंगल में जो पाइन प्रोडक्ट्स के साथ जो जानवर रहते हैं उनको भी काफी हार्म होता है, और एयर पोल्यूशन भी काफी होता है। तो जितना मुझसे कंट्रीब्यूट हो सकता था मैं उतना कर पा रही हूँ अभी। और सेकेंडली वुमेन्स को, जो वुमेन्स विलेज की जो औरतें हैं जो बाहर निकल कर काम नहीं कर सकती, जो घर बैठे ये सब प्रोडक्ट्स बना सकती है, उनके साथ मैंने ये काम करना स्टार्ट किया, और उनको रोजगार भी मिलने स्टार्ट हुआ, और वो अभी तक मेरे साथ काम कर रही है। और अभी इस काम को करते पहले 3 साल तो मैंने खुद अपने घर के मम्मी और खुद काम करना स्टार्ट किया। फिर अभी इस काम को करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस काम को आगे लेके जा सकती हूँ। काफी लोग हैं जो जुड़ चुके हैं, बट अभी भी वो मार्केट प्लेस नहीं मिल पाया जहाँ पे मैं इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकूं। अभी मेरा ये भी मोटिव है कि जो प्रोडक्ट्स हम प्लास्टिक के रूप में हम यूज करते हैं, जैसे कि डस्टबिन हो गए, ड्राई जो हमारे पास कचरा होता है, उनको क्यों ना हम जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है ग्रास के उसके साथ रिप्लेस किए जाए। तो काफी जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्लास्टिक की जगह पर हम ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, जिससे हम और भी ज्यादा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो इंडिया में प्लास्टिक सबसे ज्यादा गार्बेज की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है प्लास्टिक की, जिसको हम अभी कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट मतलब वो कर नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते प्लास्टिक को। थोड़ा उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा सा वो भी मेरा ये है कि हम क्यों ना प्लास्टिक की जगह पे इन सब चीजों का यूज कर सकें, क्योंकि जब ये खत्म होते हैं तो इसको इजिली हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये मिट्टी में भी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि लीफ से बने होते हैं, तो ये इजिली मिट्टी में मर्ज हो जाते हैं। तो अभी मेरा ये काम है कि मतलब अभी हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसको लेके जाने को सोचा है। इनफैक्ट अभी मैंने जीएसटी भी ले लिया है इस प्रोडक्ट्स का, और अमेजोन पे इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी. I'll just share a translation of what Mamta ji has shared. So she's mentioned that she learned this craft from her mother who taught her. So there was an NGO that had come to teach them, but unfortunately there wasn't a platform to sell it, and this whole process was about to start in the village. Stop in the village. So that's when Mamta ji picked it up again, and she started doing it on a more serious basis, and then she started doing it on a regular basis, and then people started inquiring her about all of these things. So she started selling them in small markets initially, and when people saw how good the product was, more and more inquiries started coming in. What they basically do is they use pine grass, जो कि हिमाचल में काफी available है. It's available in abundance in the region, and it's actually harmful for the nature. So the question is then, how can you use that and then turn it into something a little better? So this also ends up reducing plastic in the region. It's obviously biodegradable. It's a lot more sustainable. So they've been able to build a local ecosystem through this. And primary of their work happens with women. And apart from that, they're also dealing in reducing pollution and the impact that this has on other animals. So thanks a lot, Mamta ji. Really lovely to hear this. We can now head towards the questions. मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी का क्वेश्चन रहेगा तो कैन यू प्लीज रेज योर हैंड एंड देन आस्क, सो दैट हमें मॉडरेट करने में थोड़ी आसानी होगी. अगर आप सब एक साथ पूछेंगे तो फिर हमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी. Okay, Vasudha has already raised her hands. Vasudha, yeah, please. Hi, thanks. So, like, it was really, really good hearing this talk. It was such a diverse set of people, and it was very, very nice to be here and to be a part of this talk. And thanks, Arvind, for doing such a good job at moderating it. So I have 3 questions. One is for Katie, sir, which is,
How did the delay in recognizing of the Forest Rights Act in Tamil Nadu impact the work that was done in receiving the community forest rights? The second question I have is for Rigzin, which was, how did Himalayan homestays change the relationship between the community and snow leopards and the conservation of snow leopards? How did it help that movement? And last is, how do you, for Anil and Rekha, which is, how do you think that experiential learning has helped, especially with the environment, has impacted the children's relationship with nature? These are the three questions that I have. Subramanian ji, நீங்க கால்ல இருக்கீங்களா இப்போ? Yes. Sir, there was a question உங்களுக்காக Forest Right Act பத்தி. So if you could share on that. I'll repeat the question, Subramanian sir. Shall I do that? Yeah, so it was, how did the delay in recognizing in the Forest Rights Act by the state of Tamil Nadu impact the work done for community forest rights? The community forest right is now only processing, but the individual right we got almost 70%. Few people are left out because your land is a different classification, and one of the classification called Section 17. It's the Supreme Court case, so that land is owned by the Kerala Nellambur Raja. So he owned that. So, but in Tamil Nadu Assembly, they passed this Section 17 Land Abolition Act. Through that land is taken by the government. So that is not in the it is not under the Forest Department, and also it's not under the Revenue Department. So some kind of dispute. So that most of our people are living that area also. So they didn't. Government is a very slow process to giving rights in that area. Other than the individual right we got, but the community right still in pending. Thank you, Subramanian sir. Rigzin ji, there was another question for you about the homestays. Rigzin ji, are you there? Yes, हाँ जी, मैं यहाँ पे हूँ, बोलिए. Sorry, what was the question? Can you share your question again? Absolutely. So the question was, like, how has Himalayan homestays as an initiative changed the relationship that the community had with the snow leopards in terms of improvement or conservation aspects? Sure. स्नो लेपर्ड का हिमालयन होमस्टे जब स्टार्ट हुआ था तो काफी सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया. एंड देन एक्सक्यूज मी, हेलो am I audible? Yeah, we can hear you. Sorry, because I don't have a good network, so that's why. No, that's okay, we can hear you, you're fine. Okay, I think she froze right now. Yeah, you can turn off your video, Rigzin ji, and then then you can just answer without the video on if it's preferred. Rigzin ji? Hello, yes. Yeah, we can hear you. We can hear you. I think you might have to keep your camera switched off. आपको शायद आपका कैमरा स्विच ऑफ ही रखना पड़ेगा, तो आपका ऑडियो खराब नहीं होगा. Hello. We can, the thing is, let's wait for Rigzin ji to reach to go to a location where she's better network, and we can just move on with the next questions till that point. Yeah, sure. I think you had a third question, so we can go on with your question then. I think someone might have to help me translate this. How do you think the experiential learning improves the relationship the kids had with the environment? जो ये अनुभव से आप सिखा रहे हैं बच्चों को, उनका परिवर्तन से कैसे जो रिलेशनशिप बना वो कैसे बेहतर हुआ और कैसे बदला? This is for Rekha ji and Anil ji, right? Yes. Yes. Rekha ji, Anil ji, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Can you hear me? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे. तो basically
बच्चे हम लोग का जो ये जो जगह है, ये भी हमने बहुत घूमकर और देखकर सिलेक्ट किया। हाँ, कि हम लोग कहीं पे ये काम शुरू नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ये काम था जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट को ही सो कॉल्ड एक टीचर के रूप में देख रहे थे। सो वी नीडेड अ काइंड ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें मैं बच्चों को, जब एक्सपीरियंस लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जो खुद उनको एक इस तरह का एक्सपीरियंस दे, ना कि मैं उनके लिए क्रिएट करूं। तो ये जगह भी ऐसी है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चों के आसपास ये जगह है कि काफी नेचुरल, बहुत सारी चीजें, बायोडाइवर्सिटी बची हुई है। तो ये हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों के साथ मिलके। और ये बच्चे धीरे धीरे उन सब चीजों को में इंटरेस्ट लेते हैं। सुबह सुबह जाते हैं, चिड़ियों को देखते हैं, तितलियों को देखते हैं। पहले गांव में अक्सर ज्यादातर कई बार होता है, बच्चे जानवरों को या तितलियों को या किसी जानवर के प्रति कई बार उनको मार भी देते थे, और उसको उनको ध्यान नहीं देते थे कि उनसे क्या कुछ नुकसान हो रहा है, या कभी किसी को कोई चीज मर गई या कोई पौधा टूट गया। लेकिन अब ये बच्चे धीरे धीरे इन सब चीजों के प्रति सेंसिटिव हो रहे हैं और उसको पहचान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उसके साथ जी रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो पौधे बिल्कुल छोटे छोटे थे, एक तरह से झाड़ी थी, आसपास में पौधे थे, लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधे कटे हुए थे। तो धीरे धीरे बच्चों के साथ मिलके हम लोगों ने जो पौधे लगाए और जो कटे हुए पेड़ थे वो धीरे धीरे बढ़े। तो इससे बच्चों ने खुद देखा कि कैसे हम इन लोग के साथ बढ़ रहे हैं। और सभी पौधों को हम लोग को हर दिन देखते हैं बारी बारी से, कि कौन सा पौधा मर रहा है और कौन सा पौधा अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो उसको पानी देना है, उसको कोड़ना है, उसको खाद देना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। एक्चुअली कई बार जानवर आ जाते हैं और खा जाते हैं। तो इससे उनका रिलेशनशिप को वो जी रहे हैं और वो उनको अच्छा लग रहा है। जब यही बच्चों को जब हम लोग ले गए ट्रिप में और शहरों में जब जाना पड़ता था और रुकते थे एक दो दिन के लिए, तो दे फील वेरी स्ट्रेंज एंड काइंड ऑफ एलियन काइंड ऑफ थिंग, कि दिस इज वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। एंड उनको लगता था कि शायद, तो मैं उनसे पूछता था कि क्या तुम शहर में आके जीना चाहोगे, काम करना चाहोगे? और कई लोग जो शहर छोड़ के गांव में आए उनसे भी बात की, तो उनको वो अपना जगह पसंद आता है, अपनी जगह, अपने आसपास के वातावरण पसंद आते हैं। हम लोग जंगलों में भी घूमने जाते हैं तो जंगलों से में तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हैं जिसके बारे में पहले उतना ध्यान से नोटिस नहीं करते थे। कोई काट रहा है तो काट रहा है, जाने दो कोई पेड़ ऐसे है तो। लेकिन अब धीरे धीरे इन सब चीजों के प्रति बच्चे के साथ मिलके हम लोग ध्यान देते हैं और गांव वालों को भी इसमें जोड़ते हैं कि आप भी इन सब चीज पेड़ों को बचाइए, क्योंकि इसी से हमारे आसपास की इन्वायरमेंट और हमारा क्लाइमेट बेहतर होगा। और ये बात धीरे धीरे गांव वाले भी महसूस कर रहे हैं। तो बच्चे खुद भी बता सकते, लेकिन अभी अंधेरा है तो नहीं बता पाएंगे। बट इनके ड्राइंग में, इनकी राइटिंग्स में, इनके एक बार तो विकल्प संगम पे भी सहोदय में की डायरी बच्चों ने लिखा है, या फिर हम लोग जो घूमने गए हैं वहां पे बच्चों को हम पूछते थे कि तुमको क्या अच्छा लगा, वो लिख सकते हो। सो दे हैव रिटन आल्सो इन देयर डायरीज कि क्या उनको अच्छा लगा ट्रिप के टाइम में। तो सब चीजें जो नेचर रिलेटेड है, नेचर सेंट्रिक है, वो सब चीजें बच्चों को ज्यादा अच्छी लगी। तो धीरे धीरे बेसिकली बच्चों में क्या है कि अनलर्निंग की पॉसिबिलिटी है, दे कैन अनलर्न एंड लर्न न्यू थिंग्स। बड़े लोगों का जो कॉन्शियसनेस है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न। तो ये और वो अनलर्निंग भी एक नेचुरल हो, एक इन्वायरमेंट के थ्रू हो, एक अनकॉन्शियस प्रोसेस हो, तो वो ज्यादा सस्टेनेबल लगता है। इसीलिए हम लोग इनको खुद ब खुद चीजों को एक्सप्लोर करने देते हैं। That's all. बहुत सुंदर है, थैंक यू। Thank you. I think Rigzin ji has come back. Rigzin ji, can you hear me? जी कनेक्ट हुई थी, फिर उनका फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, she's gotten disconnected again, is it? अच्छा, ठीक है, okay. We'll move. If she comes back, we'll pick up the questions for her. Yeah, we can. कोई प्रश्न जो आप हमारे दूसरे स्पीकर्स से पूछना चाहेंगे? I think it's a nice platform. काफी सारे विभिन्न शहरों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, different people from different places. சுப்ரமணியன் ஜி, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி நீங்க மத்தவங்க யார்கிட்டயா கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களா? அப்படின்னா ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. There is a question in the chat box, by the way, from Shruti Sharma. Yeah, before we move on to that, I thought if any speaker wants to share anything. Proma.
अच्छा, ओके, वी कैन डू दैट आफ्टर सम टाइम आल्सो। एक क्वेश्चन है, दिस इज फॉर ममता जी। ममता जी, प्रश्न ये है कि जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती है, आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल किए हैं आपके पाइन प्रोडक्ट्स और पाइन नीडल्स, जो पाइन प्रोडक्ट्स के जो नीडल्स है उनको उनका सेल करने के लिए आपने क्या क्या विभिन्न किस्म के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया है? अगर आप उस पर थोड़ा शेयर करेंगे तो फिर बहुत अच्छा है। तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने हैंडमेड शॉप्स की सर्च की ऑनलाइन कि हमारे आसपास कहाँ पे है जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स रखते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कस्टमर्स के कि क्या डिमांड्स है उनकी, कि किस तरह के वो प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो मैंने उनके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। फिर देन धीरे धीरे मैंने इंस्टा पे ऑनलाइन स्टार्ट किया। ज़्यादातर जो भी प्रोडक्ट्स मैं बनाती हूँ वो सारे कस्टमर के कस्टमाइज पे ही बनते हैं। इससे मुझे ये भी पता चला कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स बनाऊं और कौन से डिज़ाइन बनाऊं। ज़्यादा डिज़ाइन मैं कस्टमर के ही डिज़ाइंस पे बनाती हूँ और मुझे जब नया कुछ बनाने को होता था मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि कुछ है जो मैं अभी बना पा रही हूँ। फिर मैंने कुछ एनजीओज में जहाँ पे वुमेन्स के ऊपर काम किया जाता है वहाँ पे जाना स्टार्ट किया। इनफैक्ट उन्होंने खुद ही मेरे साथ टाइप किया कि आप यहाँ पे आकर वुमेन्स को ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर वहाँ पे जाओ जो भी एनजीओज है वहाँ के लोग काफ़ी आते हैं। वहाँ एनजीओज में जैसे जागोरी एनजीओज है वहाँ पे बाहर के लोग काफ़ी आते हैं तो वो प्रोडक्ट्स ले भी लेते थे। तो वहाँ पे रखना मैंने स्टार्ट किया। और हमारे यहाँ पे और सबसे ज़्यादा मैंने गवर्नमेंट के सेक्टर में भी काम किया है जहाँ वर्कशॉप्स एग्जीबिशंस वगैरह होती है जैसे शिमला में शिमला हट में होती है एग्जीबिशंस, मनाली में, चंबा में। यहाँ पे जाकर मैंने एग्जीबिशन स्टार्ट की। दिल्ली में जाकर अभी मैं रिसेंटली निफ्ट से मेरा उन्होंने मुझे टाइप किया था तो दिल्ली निफ्ट में मैंने जाके एग्जीबिशन दी है। तो वहाँ जाकर मुझे और भी ज़्यादा नए आइडियाज़ मिले बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनके पास काफ़ी न्यू आइडियाज़ होते हैं। तो उसके ऊपर काम करने का मुझे मौका मिला और फिर वो यहाँ पे हिमाचल में भी आए थे मुझसे मिलने के लिए कि आपका वर्क प्लेस कैसा है। तो जब इस तरह का कनेक्शन बनता है तो काम करने में काफ़ी ज़्यादा और मज़ा भी आता है। तो धीरे धीरे बस अभी इसके ऊपर काम कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। संदीप जी, मेरा आपके लिए एक प्रश्न है विच इज बर्डिंग जो है उसको यदि अगर कोई फ्यूचर में एक करियर के तौर पे अगर कोई उसे परस्यू करना चाहे तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या क्या चीजें जो है उन्हें ध्यान में रखना होगा इसके पहले कि वो बर्डिंग को एक फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पे शुरू करे? आपके कुछ अगर इस पे थॉट्स हो तो। संदीप जी, आप म्यूट पर हैं। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो जैसे कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने जो मेरा पढ़ाई है जैसे एमए तक पढ़ाई भी किया, लेकिन मेरा जैसा कि बर्डिंग है मैंने खुद को बर्डिंग में ही अपना खुद का प्रोफेशन बना लिया कि ऐसे और लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि लेकिन जैसे कि हमारे गांव का एक जहाँ एक रिवर है, लेकिन जो बर्डिंग जो है लेकिन उसका स्कोप चाहिए कि आपके गांव के आसपास क्या नदी है, वेटलैंड है या कुछ ग्रासलैंड है जहाँ बर्डिंग लोग आप करवा सके। जैसे कि यह हमारा प्लेटफॉर्म पहले से बना हुआ है। जैसे कि यहाँ एक भीमा रिवर है जो आजू बाजू काफी ग्रासलैंड है, तो यहाँ कई सारी बर्ड्स जैसे कि 300 के ऊपर बर्ड्स की वैरायटीज यहाँ तो मिल जाती है। तो जैसे कि हमारा जो है मेरा बचपन जैसे गया कि वो बर्ड्स में ही गया। तो मैंने जैसे जैसे अपनी पढ़ाई आगे आगे बढ़ाई, जो जैसे कुछ जैसे 5-6 महीने स्कूल जाओ, 5-6 महीने ये अपना बर्डिंग मेथड से इनकम करो। इस यही मैंने अपना शुरू का जो है प्रोफेशन वो चालू किया। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो मैं 13 साल से छोटा था तब से मैं ये बर्डिंग कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे कि मैं आगे बढ़ता गया कि खुद खुद को जो बर्ड्स है जैसे कि कुछ बर्ड्स की जानकारी हो, जब भी मुझे न्यूज़पेपर में मिले या न्यूज़ में मिले, बुक में मिले, जैसे कि सबकी मैं इन्फॉर्मेशन लेता चला गया। और जो गांव के बच्चे हैं जैसे कि काफी बेरोजगार थे, उन्हें भी अपने साथ लेकर उन्हें भी ट्रेन करता गया। तो मेरे साथ जो जो काफी कई सारे जो बेरोजगार लड़के थे जो स्कूल अच्छी पढ़ाई पढ़ाई उन्होंने की थी लेकिन नौकरी जो है हर एक को तो नहीं मिली थी, जो उनको सबको मेरे साथ इन्वॉल्व करके इसी बर्डिंग में मैंने लगा लिया। तो आज ऐसा है कि जो यहाँ के जो 50-60 लड़के हैं गांव के, वो अच्छे से बर्डिंग में अपना करियर कर रहे हैं। अभी मुझे वैसे पहले तो यह जो हम जो शुरू किया था वेटलैंड बर्डिंग शुरू किया था तब या 5-6 महीने रोजगार मिल रहा था,
लेकिन हमने जैसे जैसे अपना अलग अलग जगह, जब बेगवन जो है गाँव है मेरा, तो गाँव के आजू बाजू भी एक 20-30 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ भी कई सारी जगह थी जो वहाँ भी कुछ अलग अलग बर्ड्स मिल रहे थे, कुछ मैमल्स मिल रहे थे। उन्हें हमने ढूंढना शुरू किया, उनका जो जगह है देख लिया, उनका हैबिटेट देख लिया। तो जो भी टूरिस्ट आते थे तो उनके हमने यहाँ वेटलैंड पे डिपेंड जो थे वो थोड़ा उसे अलग बना लिया। तो जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में जाके हम बर्डिंग करने लगे। तो जैसे कि जो फुल टाइम, जैसे कि पहले जो 6 महीना रोजगार था, तो अभी कैसा है कि हमारा साल भर कुछ ना कुछ तो इनकम उससे बढ़ता है। हेलो। हाँ हाँ, या ओके, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आई थिंक रिग्जन जी हैज कम बैक। रिग्जन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक शी इज ड्रॉप्ड ऑफ अगेन। या हाँ, वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है। Yeah, I think she is disconnected again. Okay. मेरा Yeah. sorry, for Sandeep ji, which is that जो ये birding आप करा रहे हैं, वो like आप बच्चों के like how you involving the youth in this, because and how has that changed their relationship with the environment? जो ये परिवर्तन के साथ कैसे लोगों का रिलेशनशिप और समझना बदला है बर्डिंग के साथ आते आते? हाँ, वो बात तो अच्छा है कि जैसे कि हमारा पहला गांव था, तो मैंने बोला कि जैसे कि लोग जो यहाँ के सब अपने बर्ड्स को मार के खाना वगैरह वो था। लेकिन जैसे कि ये लोग टूरिस्ट आने लगे, तो एक थोड़ा सा गांव का जो भी लोग थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन बदल गया। जैसे बर्ड्स को जो पूरे मार के थे, वही गांव वाले उन बर्ड्स को पूरा ख्याल रखने लगे। कि जैसे कि लोग बनने लगे, तो उन्हें भी पता चलने लगा कि जैसे ये बर्ड्स आएंगे तो हमारा रोजगार चालू रहेगा। तो धीरे धीरे पूरा गांव बर्ड्स का ख्याल रखने लगा। बर्ड्स के साथ साथ जो भी आजू बाजू प्लांटेशन है, कुछ जहाँ कुछ बर्ड्स के कौन सा ट्री चाहिए या कौन से ट्रीज पे बर्ड्स अच्छे बैठते हैं, वो ट्रीज तो लोग थोड़े से लगाने लगे। और आजू बाजू का जो नदी किनारे कुछ जो प्लास्टिक बच रहा था, टूरिस्ट की वजह से हो रहा था, उसे जमा करके एक जगह रखने लगे। और कुछ उनका पहला जो रहनीमान था जो कुछ सिंपल था, अब थोड़ा सा बदल गया उनका गांव में। जैसे कि पहले छोटे छोटे घर थे, अभी अच्छे अच्छे पक्के घर उन्होंने बना लिए। जो भी बाहर से टूरिस्ट आते थे उनका ख्याल रखने लगे कि उनको अच्छा खाना कैसे दे, उनको अपनी तरफ से सर्विस कैसे अच्छा दे, उनसे अच्छी तरह से बात कैसे करे। ये सब एक जैसा कि ये सब लोगों में जो है एक बदल होने लगा। धीरे धीरे जो गाँव था, एक पुराना वाला गाँव एक अच्छा गाँव बनने लगा। और मेरे ख्याल से ये 10-12 साल में मेरे गांव में तो पहले की बहुत सारी झोपड़ियां थी, लेकिन अभी ऐसे है कि मेरे ख्याल से बहुत कम झोपड़ियां बची है। सबने सिर्फ पक्के घर बना लिए। और जो भी लोग यहाँ आते हैं और उनको भी ये अच्छे सा ख्याल रखते हैं, उनको समझाते हैं कि वो कुछ लोग जो कुछ टूरिस्ट ऐसे भी रहते हैं कि वो थोड़ा सा उनको अवेयरनेस बर्ड को डिस्टर्ब करना वगैरह वो भी चालू रहता है, कुछ म्यूजिक लगाना। तो वो लोग गाँव के लोग बोलते हैं कि वो ये बर्डिंग एरिया है, आप यहाँ म्यूजिक मत चलाओ या कुछ बर्ड्स को डिस्टर्ब मत करो। और ये वाइल्ड लाइफ या बर्डिंग जगह ऐसी भी है कि यहाँ बहुत अच्छे ही लोग आते हैं और काफी सुनते भी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। I think we can see Rigzin ji is here. Rigzin ji, maybe if you can unmute, if you can hear us. Okay, Rigzin ji. Okay, I think she's not able to hear us. किसी और के अगर कोई और प्रश्न हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स जूम बटन पे, तो हम एक कर सकते हैं। तंजिल जी का एक है, तंजिल सिद्दीकी जी का। तंजिल जी प्लीज, आपको अनम्यूट करना होगा। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया, आप पूछिए। हाँ सर, ये कह रहे थे कि मैं तो रहता हूँ इस वक्त दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी में, और मैं रहने वाला एक्चुअली बिहार का। बिहार में हमारे यहाँ महिलाएं कुछ नहीं करती, चाह रहे हैं कि चाहे तो आप लोग कुछ एक्टिविटी आगे कीजिए या हम लोग को बताइए कि हम लोग कुछ कर पाए। तंजिल जी, आपको कोई क्वेश्चन था इसमें या फिर वाज इट अ जनरल कमेंट व्हिच यू वांटेड टू शेयर? नहीं, कमेंट नहीं, मतलब चाह रहा है कि मतलब जो जिस तरह की जगह देखिए कि हर जगह लोग काम कर रहे हैं, यहाँ की महिलाएं कोई काम नहीं करती।
मतलब इस तरह का कोई क्या बोलिए उसको अवेयरनेस नहीं आया इस इलाके में। हाँ, तो आई थिंक ये शायद फिर आपको ऑफलाइन ही लेना होगा, यहाँ पे शायद इसका भी इमीडिएटली तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा अभी। अगर हमारे ओके ओके पैनलिस्ट में से किसी को अगर आपको कोई प्रश्न हो तो फिर आप जरूर पूछ लीजिए। नहीं ये नहीं सर, क्वेश्चन तो मुझे आई थिंक आप ऑफलाइन आपको लेना होगा। तो ऑफलाइन में कैसे तो कॉन्टेक्ट नंबर है सर? हाँ, तो एक्चुअली विकल्प संगम का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे शेयर किया है चैट में। आई थिंक अंशल जी ने शेयर किया है विकल्प संगम के सारे डिटेल्स, एंड एनएपीएम का भी डिटेल्स जो है शेयर किया है। आप इनसे जरूर संपर्क कीजिएगा, इनके माध्यम से आपको काफी सारे जानकारी मिल सकती है इसके बारे में। आई थिंक या वसुधा, आपको जिससे कनेक्ट करना है उनका भी नाम बता दीजिए, फिर हम उनसे इनका ईमेल आपको फॉरवर्ड कर। हाँ, वो आप चैट पे टाइप कर दीजिए भी। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबिका यादव, आई थिंक शी इज रेज्ड हर हैंड। अंबिका जी प्लीज कैन यू अनम्यूट एंड शेयर योर क्वेश्चन? हाँ, मेरा प्रश्न वो रिंगजिल जी से था, तो है नहीं अभी। रिगजिन जी तो है नहीं यहाँ पे अभी। अगर आपका कोई और स्पीकर के लिए सवाल हो तो आप वो भी अभी पूछ सकते मैं हैं। बिहार के वो जो अनिल जी थे उनसे प्रश्न पूछना ये चाह रहा था कि उन्होंने चुना जिस गांव में बिजली नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी हमेशा बोलते रहते हैं कि भारत का हर गांव में बिजली पहुंचा दिया गया है। वहां के बच्चे अभी चांदनी में खाना खा रहे थे, तो बिजली एक गांव में नहीं रहना ये एक दुर्भाग्य का काम है। और अनिल जी को मैंने बाकी सारे काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्या बिजली भी उस गांव में आए इसका भी प्रयास उनके द्वारा होता है क्या? मेरा ये प्रश्न है। अनिल जी। हेलो हेलो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, बिजली अभी पिछले 10-12 दिन से नहीं है, वैसे बिजली है, लेकिन अभी 12-13 दिन से यहाँ पे कोई इसको ठीक नहीं किया। कुछ खराब हो गया है, जिसके कारण वो लोग बना नहीं रहे हैं, और गांव के लोग भी बिजली ऑफिस में नहीं जा रहे हैं। और मैं भी कई बार बोला हूँ, लेकिन वो लोग आते नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे कि बिजली खराब हो जाती है तो बहुत दिनों तक खराब रहती है, और इसके कारण हम लोग तो लेकिन मैं बिजली पे भी अपनी निर्भरता हम लोग चाहते हैं कि कम करें, क्योंकि वो भी एक इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बिजली के बिना भी जीना सीखें, लेकिन कुछ जरूरतें हैं अभी भी जिसको हम लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके जैसे मोबाइल चार्जिंग हो या कंप्यूटर से कुछ काम होता है, तो वो सब काम के लिए दिक्कतें होती है। ये है, लेकिन बिजली पिछले 15-20 दिन से नहीं है, वैसे बिजली है। तो जैसे आपने कहा, खैर भारतवर्ष में विकास के लिए तो और बहुत माने वैकल्पिक विकास भी जरूरी है। आपने ठीक सोचा है कि बिजली नहीं है तो हम सोलर एनर्जी से भी काम चला सकते हैं। तो क्या आप बच्चों को इस तरह का एनर्जी माने जैसे कि आप प्राकृतिक रूप से बच्चों को व्यवहारिक रूप से कुछ सिखाना चाहते हैं, तो क्या ये बात भी आप उनमें डालते हैं कि सौर से हमको बेहिसाब ऊर्जा मिल सकता है, इसका बच्चे इसका शिक्षा पाए? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है अनिल जी। कुछ पूछा उन्होंने फिर से क्या? हाँ, मैंने पूछा कि ये जो सोलर एनर्जी है, जैसे बिजली के नहीं होने का हम आपका जो मैंने एक तरह से आपने ये कहा है कि विकास का जो मॉडल है, विकास का मॉडल होने से बिजली की जरूरत है। तो एक तरह से मैंने जो लोग विकास माने विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और बिना बिजली कोई साइंटिफिक विकास से तो होगा नहीं। क्योंकि आपने बिजली नहीं होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिजली नहीं होने से भी लोगों को काम चले और ऐसा एक कोई मॉडल हो, तो उसके लिए जो विकल्प है वो सोलर एनर्जी है। तो आप क्या बच्चों माने इस तरह का बात भी माने क्या होता है क्या, माने हम कैसे विकल्प का माने ऊर्जा बनाएं ने इस तरह का चर्चा, या बच्चों को इस तरह से माने प्राकृतिक रूप से माने क्या बोले उसको माने सीखने का काम करवाते हैं क्या?
देखिए, हेलो। हाँ जी। देखिए, हम लोग शुरू से ही यहाँ आने से पहले ही सोचे थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्राकृतिक और स्थानीय रिसोर्सेज पे के साथ मिलके जिएंगे। इसलिए हम लोगों ने घर भी मिट्टी का ही बनाया है और लगभग खाना वाना भी सब हम लोग को मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी से बन जाता है। किताबें हम लोग को तो बाहर से लेनी पड़ती है। लाइट की जरूरत दिन में है, दिन में हम लोग चाहते हैं कि खाना बना लें और खा लें और रात में सो जाएं। लाइट से ज्यादा लाइट होने से चिड़ियों को भी, कीड़ों को भी दिक्कत होती है। उनको अंधकार चाहिए क्योंकि वो नॉकटर्नल सभी एनिमल नहीं है, वो लोग डे लाइट में जीते हैं। तो जो लोग इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं उनको लिए चारों तरफ लाइट होना जरूरी नहीं है, लेकिन काम के लिए तो लाइट चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो क्योंकि लोगों से कनेक्ट होना है। तो हम लोग सोलर को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अभी सोलर कुछ लैंप है हमारे पास एक दो, तो उससे हम लोग काम चलाते हैं। और टॉर्च है, टॉर्च को यूज करते हैं। सोलर के बारे में सीख नहीं पाए, कुछ यहाँ पे जानते नहीं है, बस जानते हैं कि सोलर एक ऑप्शन है जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कुछ लोगों के सपोर्ट से। तो ये कोशिश है। बच्चे भी इसको जानते हैं, सीख रहे हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आई थिंक रिग्जन जी, एक फाइनल अटेम्प्ट। आई थिंक रिग्जन जी इज जॉइंड अस ऑनलाइन। रिग्जन जी, कैन यू हियर अस? वी रियली वांट टू हियर यू। हेलो। यस, फाइनली आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। कल के लिए बात करना था। चलो चलो, गोले गोले बैठ, चलो। हेलो रिग्जन जी। रिग्जन जी, आपकी आवाज आ तो रही है, लेकिन सब ब्रोकन आवाज आ रही है, आपकी पूरी आवाज नहीं आ रही है। आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली। Well, if anyone does have questions for Rigshin ji, what they can do is they can mail Vikalp Sangam again and we'll forward that. Yeah, okay, that can be another alternative. And यदि अगर कोई इन संस्थाओं से जुड़ना चाहे, या हो विकल्प संगम या हो वो NAPM, तो चैट पर ऑलरेडी उनके डिटेल्स, उनके सोशल मीडिया एड्रेसेस वगैरह सब शेयर किया है। वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन चैट, सो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। आप जरूर रीच कर सकते हैं। शायद हमें रिग्जन जी की आवाज सुनने ना मिल पाए, सही थिंक यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। हम प्रोग्राम के समाप्त पर पहुंच रहे हैं अभी। तो बिफोर वी एंडेड, क्या मैं अपने स्पीकर्स से एक बार रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि उनके कुछ क्लोजिंग थॉट्स अगर हो, तो एक एक स्पीकर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आई जस्ट अनम्यूट ऑल ऑफ देम वन बाय वन एंड देन आई जस्ट रिक्वेस्ट इफ दे हैव एनी क्लोजिंग थॉट्स टू शेयर। Subramaniam ji, okay, I'm sorry, I think I just missed one question. Really sorry for this. Vasudha had a question. Oh, I'm really sorry. Please, your question, Vasudha. एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है ममता जी के लिए, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो ममता जी, मैं जानना चाहती थी कि जो आप काम कर रहे हैं वो like how has that helped the women of the community, because I feel like you're working mostly with the women, so how has that created a space for women in the community? I was interested in knowing that. मतलब मेरा मेन मोटिव मतलब अभी तो ये है कि पहले तो मैं खुद के लिए जब तक खुद हम खड़े नहीं होते, अपने लिए इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते, तब हम किसी और की हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मुझे पहले 3 साल लगे। फिर देन मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मैं खुद इस काम से इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, तो क्यों ना हम और अपने विलेज के आसपास की जो वुमेन्स है, क्यों ना हम उनको भी ये रोजगार दिया जाए। तो सबसे पहले मैं अपने गाँव की लेडीज के साथ ही काम करना स्टार्ट किया, उनको ट्रेनिंग्स दी और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। फिर कुछ एनजीओस में जाकर वहाँ की विलेज की आज मतलब अभी तक मैंने 3 साल में 100 से ज्यादा वुमेन्स को ये ट्रेनिंग्स दी है और वो काम कर भी रही हैं अपने लेवल्स पे। और मेरे लेवल्स पे जो काम करते हैं मेरे साथ अभी सिर्फ 11 या 12 लेडीज है जो काम करती हैं, जो मेरे थ्रू जो ऑर्डर्स आते हैं वो ऑर्डर्स को बनाती हैं। तो इस तरह से काम होता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी।
I think I'm not audible. If anyone has any questions, please feel free to email me. Okay, बढ़िया. I think रिग्जन जी आपकी आवाज हम सुन नहीं पाए, मगर आपका ईमेल आईडी तो हमें मिल गया है. यदि अगर कोई रिग्जन जी से I think 2-3 प्रश्न थे किसी के, there were a couple of questions. तो अगर आप शेयर करना चाहे तो ईमेल आईडी मेंशन किया है उन्होंने चैट पे, तो प्लीज आप जरूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा. प्लीज फील फ्री टू यूज दिस टू शेयर योर क्वेश्चंस. I think I'll once again take the chance. Before that, any other final questions? I don't want to miss any more questions. इसके पहले कि हम closing पर जाए. Okay. Okay, thank you. So I'll now request our speakers to just share their final closing thoughts on the talk and what do they see. So maybe 1 minute sharing from their end. ममता जी, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपके क्लोजिंग थॉट्स के लिए? यस सर. तो आप सबसे बात करके काफी अच्छा लगा. मुझे कुछ नया आइडियाज और भी मिले. हर जो भी इंटरेस्ट में अलग अलग रेखा जी जो भी काम कर रहे हैं, तो उनसे काफी आइडियाज मिले कि मैं अपने काम को किस तरह से आगे बढ़ा सकती हूँ, किस तरह से जो इन्वायरमेंट को लेकर किस तरह से मैं और ज्यादा काम कर सकती हूँ. तो मुझे काफी अच्छा लगा सबसे बात करके, और शुक्रिया करना चाहूंगी मैं आंचल जी से जिन्होंने मुझे आप सबसे मिलवाया, और विसुंधरा जी से भी. अरविंद जी, आप सबका शुक्रिया. काफी अच्छा लगा मुझे बात करके आप सबसे, और थैंक यू, सबका शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप आई आज. संदीप जी, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपके क्लोजिंग थॉट्स के लिए? हेलो. हाँ हेलो. हाँ, ये तो तुमसे आवाज येते. हाँ, बोलिए. आपकी क्लोजिंग थॉट्स आप जो शेयर करना चाहे आप हमारे साथ, आपको टॉक कैसा लगा एंड इन जनरल आपकी क्लोजिंग थॉट्स? हाँ, तो सबसे बात करें, मुझे भी अच्छा लगा काफी. जो जैसे कि मेरा यहाँ काम है और जो बाकी भी जगह जो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिली. अच्छा लगता है कि वो जैसे अपने से भी कई सारे लोग हैं जो हर एक जगह पे अपना जो इन्वायरमेंट का है, जैसा कि लोकल टूरिज्म है, जो एक गांव का जैसे होता है कि जैसे बच्चे हैं, हर एक को पढ़ाना है, तो एक हर जगह एक जो काम करे लोग, ये सबको मिलकर काफी अच्छा लगा. आपसे बात कर भी और सबसे बात करके भी मुझे काफी अच्छा लगा. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे भी बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. एक बार कुंभारगांव जरूर आने की कोशिश करूंगा. कराड़ में मेरा एक दोस्त का घर है, तो कुंभारगांव तो कराड़ में दोस्त का है, तो डेफिनेटली कुंभारगांव तो मैं ट्राई कर ही सकता हूँ एक बार. बहुत बहुत धन्यवाद. अनिल जी एंड रेखा जी. हेलो. हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज अच्छे से आ रही है. हाँ. क्या मुझे भी काफी अच्छा लगा आप सभी से मिल करके, और बहुत कुछ जाना समझा हमने. और ये अच्छा लगा कि बहुत ही अलग अलग जगहों पे और अलग अलग विषयों पे और अलग अलग चीजों पे काम हो रहा है, और दिल से लोग लगे हुए हैं और इतनी अलग काम हो रहे हैं, तो अच्छा लगा. और ममता जी हैं जो कर रही हैं, उनसे भी काफी अच्छा लगा कि इतनी सारी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दे पाई, और खुद भी वो काम जो खत्म हो रहे थे और वो अबंडन जैसा था उसको समेट कर एक नया प्लेटफॉर्म दी सभी के लिए और अपने लिए भी, तो काफी अच्छा लगा. ये वर्डिंग का भी जो इनका है वो भी अच्छा लगा. तो वो कि एक इससे तो है कि हम एक कनेक्ट होते हैं नेचर से, और उसके बाद लोगों को भी कनेक्ट करते हैं, और जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे नेचर से हम उसको बचाने की भी कम सोचते हैं, नहीं के बराबर सोचते हैं. तो इसमें एक काम नहीं हो रहे, बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और हमारे लिए भी अच्छे हैं कि हमारे बच्चे भी इस तरह से जुड़ेंगे और अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है. और भी लोग अलग अलग जो काम कर रहे हैं उससे काफी हौसला मिला और मोटिवेशनल रहा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी. बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी. सुब्रमण्यम सर, நீங்க கால் இருக்கீங்களா சார்? Yes, I am. உங்க final closing thoughts sir. Yeah, we some institution we started. The hospital also we set up a 50-bedded hospital. Now we are giving a free treatment for our 25,000 people, tribal people here. That is one of the thing.
And also we started a nursing school, A&M course for 20 seat every year. We are training every year 20 Adivasi girls as nurses. That is also one of the major achievement I thinking. And we have a BBPT Vishwabharati Vidyodaya Trust is running a primary school up to 5th standard. We are teaching Tamil and English there. So giving a good education for locally available children. That's also I want to add. And also for community owned property, we have as 170 acres of land in the tea estate. So that is managed by tribal people, but whatever the resource we are income getting that from that estate, that we can use for the community needs. That's only I want to add. Thank you. Romba nandri, sir. Thanks a lot. I think I'll just invite Vasudha now to take over. Vasudha has some announcements and gentle guidelines to share. So Vasudha, over to you. It's the wrap up. Yeah. So I wanted to say thank you to all the speakers for coming and, you know, taking time out on their Sunday and sharing about their amazing initiatives with us and creating a space for us to learn and reflect. And thank you, Arvind, for doing such a wonderful job at moderating. And hope this is not the last time we meet. I'll just do it in Hindi. सब स्पीकर्स को थैंक करना चाहती थी कि अपने अपने रविवार दिया और हमारे साथ अपना काम शेयर किया। इन बातों से हमारी जागरूकता और सीख पड़ती है और ख्वाहिश है कि ये आखिरी बार नहीं है कि हम मिल रहे हैं और हम फिर से मिलते रहे और एक दूसरे के साथ लर्न करते रहे और शेयर करते रहे। और अरविंद जी, थैंक यू, आप आए और अपने इस संवाद को मॉडरेट किया। हम these grounded voices happen every Sunday, जहाँ पे हम अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। तो बाकी सब अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज आते रहिए और देखते रहिए। And yeah, that's all from my end. Thank you everybody for attending and thank you all the speakers for such a lovely talk and so much learning.